بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش ہیں آپ لوگ؟ کتنے خوش ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بھائی تو بہت خوش ہیں۔ چلیں الحمدللہ۔ آپ کے لیے آج آپ کے لیے بڑی کلرفل پریزنٹیشن ہے۔ جس طرح لیسن ہوتا ہے اس سے ذرا ڈفرینٹ۔ تو یہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے الف مبروک، یعنی آپ کو کتنی مبارک ہو؟ ہزاروں مبارک یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ تو یہ آپ کے لیے سویٹس، چاکلیٹس، فلاورس، اس طرح کی آج آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ الحمدللہ کہتے ہیں ہم سب، کیونکہ آج وہ بیچز کا رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا کہ ہم نے آج 2 بیچز اپنے کمپلیٹ کیے ہیں، سکسیس کمپلیٹڈ۔ QC1 435 کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور QC2 116 کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور یہ سب کچھ الفلاح منزل ٹرسٹ کی سرپرستی میں ہی ہوا۔ ہم نے آپ کو جو کورس آپ کے سامنے پیش کیا، کچھ لوگوں کے تھینکس کے ساتھ ہم اپنی آج کی جو ہے پریزنٹیشن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ارشد اقبال ملک صاحب، ہمارے استاد محترم، جو کہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے بانی ہیں۔ ٹیم الفلاح کا بھی بہت بہت شکریہ، ان کے لیے دعائیں۔ انہوں نے ہمیں ہر جگہ پہ سپورٹ کیا، کورس مٹیریل سے لے کر سارے آپ کے سرٹیفکیٹس بھی آپ کو الفلاح منزل ہی سے ملیں گے۔ اسپیشل تھینکس کس کے لیے؟ کورس کوآرڈینیٹر زاہد بھائی کے لیے۔ زاہد بھائی آپ کو تھینک یو، ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دیں، آپ کو استقامت دے، آپ کو سلامت رکھے کہ آپ ہم سب کی اسی طرح سے ہیلپ کرتے رہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرس کے لیے ہر جگہ پہ آپ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں۔ اسپیشل تھینکس ٹو فواد بھائی، جو کہ ہمارے ٹیکنیکل سپورٹ کے بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں، جو ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ، اور بھی مختلف کام کرتے ہیں۔ اقصیٰ ماگرے ابھی شاید آئی نہیں ہیں، لیکن سسٹر اقصیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بہت خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، قبول کرے ان سب کی خدمات کو۔ اسپیشل تھینکس ٹو آل والنٹیئرس۔ اصل میں بہت سے لوگ ہیں، سسٹرز، سسٹر ام طلحہ ہیں، سسٹر عظمیٰ ہیں، نورین، حفصہ، سمیرہ، سجل، زاہد بھی کسی کا نام بھول رہا ہے مجھے تو بتا دیں۔ آل ویل وشرز، بہت سے لوگوں نے ہمیں، جنہوں نے ورک بکس چیک کر کے دی، ان کے نام تو میں بھی لے نہیں سکی۔ بہت سے ایسے سسٹرز ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کی ورک بکس والنٹریلی چیک کی، اپنا ٹائم لگایا، اور سب کو اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا دے، اور مزید دین کی خدمت کرنے کا ان کو بھی اور ہم سب کو بھی اور آپ سب کو بھی موقع دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں چنتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے، ورنہ اللہ کے کام تو ہو ہی جانے ہوتے ہیں نا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں وہ تو ہو جائیں گے، لیکن کسی کے تھرو ہوں گے۔ تو اگر ہم سے کچھ کام لیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پہ بہت ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور دین کے راستے میں کچھ تھکاوٹ، کچھ مشکل، یہ یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ اسپیشل تھینکس اینڈ دعاز اس کے لیے فاؤنڈر آف دی کورس ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ کیا دعا لکھی ہوئی ہے؟ اور یہ اتنا خوبصورت یہ بنا ہوا ہے ایک سراہی سی، کیا ہے یہ دعا؟ حوض کوثر، حوض کوثر جنت میں سقاکم، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر میں سے پلائے آپ کو، آپ سب کو، یعنی یہ کم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے من الکوثر، کوثر۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر سے اس دن پانی پلائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوگا نا کہ وہ اس حوض سے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ تو یہ خوبصورت سی دعا ہے۔ ڈاکٹر کے لیے میں نے ایک اچھا سا ڈھونڈا کہ کیا ان کے لیے ہونی چاہیے دعا، اور بہت سی دعائیں ان کے لیے، ان کی وجہ سے ہمیں اتنی آسانی ملی ہوئی ہے۔ بہت آسان کورسز ہیں، آسان فہم ہیں، پڑھنا بھی آسان ہے، سمجھانا، کسی کے آگے اس کو پریزنٹ کرنا بھی آسان ہے۔ اب جو ہمارے QC1 کے اسٹوڈنٹس تھے، جو
आज अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए खबर ये है कि मेरे पास जो QC2 स्टार्ट हो रहा है वो जून 5 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये अभी थोड़ा सा लेट है, 1 मंथ का पीरियड है, तो हम मीनवाइल में कुछ और टीचर्स के QC1 जो 2 स्टार्ट हो रहे हैं, QC2, वो भी आपसे शेयर कर देंगे, उनकी डिटेल्स भी आपसे शेयर कर देंगे दूसरे टीचर्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप लोग वो वाले कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें, एक ही तरह के कोर्सेज, सिर्फ टीचर का फर्क होता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप 1 मंथ उनसे पढ़ लें, अगर आप चाहें तो बाद में आके हमें भी ज्वाइन कर लें। अदरवाइज अगर आप 1 मंथ थोड़ा सा गैप लेना चाह रहे हैं तो आप गैप ले सकते हैं। बहरहाल मैं QC2 जून 5 से ही स्टार्ट कर पा रही हूँ, कुछ रीजंस हैं। एवरी मंडे क्लास होगी QC2 की। अभी जो हमारे QC1 के लोग थे उनकी मंडे को क्लास होती थी ना, राइट जी। तो आप लोगों की मंडे की क्लास की रूटीन है, इसलिए आपकी जो अब आप QC2 में जा रहे हैं तो QC2 में आपकी मंडे की क्लास है, और क्लास का टाइम होगा 6 बजे से 8:30 बजे तक, जिसमें हम तकरीबन 15 मिनट्स की ब्रेक लिया करेंगे मगरिब के लिए, ठीक है। और जहां भी मगरिब फॉल कर जाएगी वहां पे हम ब्रेक ले लेंगे इस्लामाबाद के टाइम के मुताबिक, क्योंकि ये जून का मंथ आगे चल रहा है तो फिर इसमें मगरिब काफी 7:30 के अराउंड हो जाती है, तो उस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब जो हमारे साथी QC2 कंप्लीट कर चुके आज, उनके लिए खबर क्या है कि QC3 स्टार्ट हो रहा है हमारा जून 2 से, जो मैं पढ़ाऊंगी एवरी फ्राइडे 6 PM 8:30 PM तक, उसी तरह मगरिब की ब्रेक होगी। ये आप लोगों का टाइम है। मीनवाइल जो हमारे QC2 के लोग हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये दूर है थोड़ा सा कोर्स, कब शुरू हो रहा है, जी जून में शुरू हो रहा है, तो ठीक है, मई में शुरू होने वाले कोर्सेज की हम आपसे डिटेल शेयर कर लेंगे। जो भी मुझे कोर्स मिलेगा QC3 का, जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, मैं आपके साथ आपके ग्रुप में ही फ्लायर शेयर करूंगी। आप लोग ग्रुप को भी ना लीव कीजिएगा, ग्रुप में ही आपको हम फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे, ग्रुप को कोई भी लीव ना करे, क्योंकि हम इसमें फ्लायर्स शेयर करेंगे और आपसे बाकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट, इसकी बिल्डिंग देख लें। बल्कि आपको मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अल-फलाह में 7 मई को एक गेट टुगेदर हो रही है। जाहिद भाई आपको पता, आ रहे हैं आप? जी मुझे पता है, कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, मैं ना मुझे वकास भाई से आज इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें और कम से कम 10 लोगों को तो लेकर आए, ठीक है ना। तो एक तो जाहिद भाई चलेंगे ना हमारे साथ, ठीक है जाहिद भाई, और 10 लोग मजीद जाहिद भाई ढूंढते हैं, ठीक है ना। ग्रुप में, दोनों ग्रुप्स में हम शेयर करेंगे। मुझे वो पूरा वो इनविटेशन का कार्ड और एवरीथिंग मैं ना शेयर करूंगी आज, ताकि जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं या गिरदोदमा में रहते हैं वो जरूर आए। ये असल में फ्रेंड्स ऑफ अल-फलाह का एक समझे एक गेट टुगेदर होगी, ईद मिलन टाइप, जिसमें आप लोगों ने शिरकत अगर की तो बहुत अच्छा होगा। अपने असातिज़ा से भी आपकी मुलाकात होगी, आपकी म्यूचुअली एक दूसरे से, जो जैसा कि अल-फलाह का विजन है ना कि लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया जाए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे मिलेंगे अपनी तरह के लोगों से और फिर कुछ व्यूज एक्सचेंज करेंगे और म्यूचुअली कोई प्रोग्राम बनता है कि हम किस तरह से दीन का काम मजीद करें, सीखें और सिखाएं वगैरह। तो ये इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है, जरूर फवाद भाई, इंशाल्लाह। ठीक है जरूर। फवाद भाई और जाहिद भाई तो बुक हो गए हैं, 2 भाई तो मिल गए हैं, बाकी 2 भाई आप लोग ढूंढ लें, एक भाई एटलीस्ट ढूंढ लें में से, ठीक है ना। हमारे पास भाई इस समय कम है ना, तो सिस्टर्स को मैं ढूंढूंगी इंशाल्लाह। तो ये है कुछ ऐसी एक लिस्ट आपके सामने कि ऑनलाइन भी और ऑन साइट भी कुछ कोर्सेज जो अल-फलाह से हो रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि QC1 आप लोगों ने भी किया है, कुछ ने 2 किया है, 3 की मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी, तो 4 भी तो होता है ना। इसके बाद आप 4 करेंगे, 3 वाले लोग 4 करेंगे, फिर आप 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे। ये जाहिद भाई एंड कंपनी 6 में है, उस्मा, सिस्टर उस्मा वगैरह ये लोग 6 में है, सिस्टर अक्सर वगैरह आई थिंक 4 में है अभी, और इसी तरह सिस्टर हफ्सा भी 6 में है, तो हम लोग 7 में हैं, और 7 में हम हमेशा ही रहते हैं ना, तो ये सारे लोग एक दिन QC7 में हम आपस में इकट्ठे मिल जाएंगे। तजवीद भी पढ़ाई जाती है, कोई आधे घंटे का सेशन होता है अल-फलाह की तरफ से, किसी वक्त में किसी कोर्स के साथ आप लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अरबिक लैंग्वेज का एक कोर्स मदीना बुक के नाम से कोर्स होता है, इसके बारे में भी अगर कोई डिटेल आई तो आपसे शेयर करेंगे कि ये नया कोर्स कब शुरू हुआ है। एक कोर्स इनका कंप्लीट हुआ है, 3 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल ये कोर्स होता है, काफी लंबा कोर्स था, ये 2.5 ईयर्स में तकरीबन हमने ये कोर्स किया। एक बलागा का कोर्स अभी नया स्टार्ट हुआ है, ये सीनियर्स के लिए ज़रा, और इसके अलावा किड्स के प्रोग्राम्स भी होते हैं, और जिन लोगों को इनके मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो फिर अल-फलाह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। किड्स का प्रोग्राम है या कुछ भी आप लोगों को। बैच समरी देख लीजिए। हुआ ये था कि QC1 बैच 435
1 जनवरी को शुरू हुआ, 10 अप्रैल को खत्म हुआ, पूरे 3 महीने में। बाकी तो 1-2 क्विजेस होते हैं, 2 क्विजेस की रिवीजन होती है, 2 क्विजेस के डेज होते हैं, तो 4 तो वही डेज निकल गया। तो पूरे 3 मंथ्स में जो हमारा स्केड्यूल होता है एंड उसके मुताबिक हमने इसको कैरी ऑन किया। इनिशियल इंटेक थी 170 की और सक्सेसफुली कंप्लीट किया 30 लोग। फवाद भाई, आपको याद है लास्ट टाइम भी इस मौजू पर बात हुई थी कुछ? जी जी बिल्कुल, मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से। और आपका मशवरा माना होता ना तो कुछ बेहतर रिजल्ट होता, आपका मशवरा नहीं मानते है ना? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगा था कि आप मेरी मान लेते हैं ना तो अच्छा हो जाता। हाँ, फवाद भाई ने एक पेनल्टी डाली थी, कह रहे थे कि ये कोई पेनल्टी डालें लोगों पे ना, ये तो कम से कम इतनी तो डालें ना कि ताकि जो 170 लोग ज्वाइन करेंगे ना तो थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी दीन के लिए आई थिंक हमें क्या कहूँ। चलें जी, अब आप लोगों के लिए ये फूड फॉर थॉट है। आप सोचें कि 170 लोग रजिस्टर होते हैं, हम सबको ग्रुप में शामिल करते हैं, हम सबसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके सवालात के जवाब देते हैं। जाहिद भाई लोग इन दिनों में इतना बिजी होते हैं जब कोर्स स्टार्ट होता है और कोर्स एंड होता है, बहुत मुश्किल समझें कि ये सारा का सारा सिलसिला होता है। सब लोग वॉलंटियर्स हैं, अपने अपने इनकी काम जॉब्स हर एक की ड्यूटीज हैं, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी। अच्छा, ये सब करके तो एंड में सिर्फ 30 लोग ना, ठीक है ड्रॉप आउट होता है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप आउट है ना। तो इसकी रीजंस आप लोग भी कुछ ना कुछ मेरे साथ अगर पर्सनली भी शेयर करना चाहें तो मुझे। ब्रेकअप इसका देख लेते हैं कि ये जो 30 लोग थे इन्होंने क्या किया। रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे इस पर खुशी है कि इन 30 लोगों में से 20 लोगों ने तो एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट हासिल किया, दैट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट। और 8 लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने मेरिट का सर्टिफिकेट लिया, और 2 लोग किसी वजह से थोड़ा सा उनके कम ग्रेड्स हैं, लिहाजा वो कंप्लीशन पे तो आप जिन्होंने कंप्लीट किया है इंशाल्लाह वो उसको रिपीट करके अपना बढ़ा सकते हैं परसेंटेज की। बैच 116 जो QC2 का है, ये भी 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 7 को एंड हो गया। सॉरी यहाँ पे ये 2 आना था, थोड़ी सी मेरे से टाइप हुई, हम पीछे भी देख लो जरा, कहीं पे अगर है तो आप उसको एक्सक्यूज कर दें, मैं इसको ठीक कर लूँगा। जाहिद ये नहीं, जाहिद ये 23 चल रहा था ना, सॉरी। यस ये यहाँ ठीक है, नेक्स्ट में वो वहाँ पे जो 2 था ना, वो 2 वाले में जी, थोड़ा जी। सा हो गया। यस ये इसको मैं ठीक कर सकी तो कर लूंगी, अदरवाइज आप खुद समझदार है सारे। तो ये हम बात कर रहे थे कि इसमें इनिशियल इंटेक क्या थी, 65 और 26 लोग कंप्लीट किए। ये बल्कि बेहतर रहा। वैसे को याद है ना, QC2 के लिए काफी वरीड थी कि बहुत छोटा बैच है ना, लेकिन देखें आपने भी मुझे कहा कि नहीं छोटे और बड़े से क्या होता है ना, स्टूडेंट्स सीरियस होने चाहिए। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि ये स्टूडेंट्स माशाल्लाह वाकई बड़े सीरियस थे। देखें कि 26 में से 12 लोग एक्सीलेंट हो गए, 14 मेरिट पे हो गए, तो कितना अच्छा रिजल्ट हुआ इनका ना। सब लोग लग रहा है कि वाकई ये लोग सीरियस था। तो उस लिहाज से वाकई बैच के छोटे या बड़े होने से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बस लोग कमिटेड हों। देखिए जी, QC2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो हमारे QC1 के लोग जिन्होंने अभी पास किया है वो चाह रहे होंगे ना कि पता चले कि QC2 में क्या होगा। तो इस तरह का टाइटल आएगा, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है ना, QC1 से जरा डिफरेंट है। ये आपका टाइटल आएगा जिससे आपका कोर्स शुरू होगा। मकासद क्या होंगे कोर्स के, कि हमने मुसहफ के इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ने हैं। मुसहफ याद है किसी को, जो मैंने दिखाया था शुरू में, ये होता है ना मुसहफ हमारा हाफिजी, देख रहे हैं हाफिजी मदनी मुसहफ, ठीक है। ये 15 लाइनों वाला मुसहफ होता है, 15 लाइन्स होती हैं और इसमें हर लाइन में 9 अल्फाज वगैरह वगैरह, जो इसका डेटा आपके साथ QC1 में शेयर करते हैं। तो हमने क्या करने हैं कि टारगेट ये है कि कुरान की हर लाइन में मौजूद 7 अल्फाज को जान लेंगे। 7 तो अल्फाज कितने थे टोटल, 9 थे ना, 9 में से 7 अल्फाज को जान लेंगे। आप मुझे बताएं कि QC सिर्फ 2 में, 2 के एंड पर आपकी इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि आप हर लाइन में मौजूद 7 वर्ड्स से फेमिलियर होंगे। तो क्या ये एक अच्छी अचीवमेंट है या नहीं? कोई बताए आप में से, कैसी मोटिवेशन हुई आपको, अच्छा लगा आपको ये सुन के कि हम इस कोर्स में क्या कुछ सीखने जा रहे हैं? अच्छा खासा मोटिवेटिंग हुई। इवन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मुझे तो QC1 के बाद ही बड़ा अच्छा खासा फर्क नजर आया है जब हम पढ़ रहे होते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी देखिएगा आप लोगों से हम फीडबैक भी लेंगे, जो हमारे QC2 के साथी हैं वो बताएंगे QC1 वालों को कि किस तरह हमने अपग्रेड किया अपनी वोकैबुलरी को, नॉलेज को, फहम को कुरान के ना। फिर इसमें एक इशारों और फिक्रों का कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका, उसी लोगों के जरिए कुरान की हर सतर में आने वाले कमजोर अफाल को सीखना, ये जी मेन चीज है, मेन जो फीचर है ना आपके QC2 का वो ये है। कमजोर अफाल का नाम शायद QC1 करने वाले बच्चे आज पहली दफा सुन रहे होंगे, ठीक है। और QC2 वाले तो ये
इनसे निपट चुके हैं ना, वो भी आपको बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अरबी बोलचाल के जुमले भी हम सीखेंगे। ये वो मुस्तफ के 5 सफ़ात हैं, इनकी जरा सेटिंग देखने वाली है। पहला सफ़ा इस तरह होता है, ये 2 कंबाइंड होते हैं आपस में, ये 2 कंबाइंड होते हैं आपस में, ये आप देखेंगे। हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे शुरू की क्लासेस में। बिल्कुल QC1 के तरीके पर होगा कि 20 लेसन होंगे। QC1 में भी 20 लेसन थे ना। अच्छा, इसके हमने तो कहा कि मुस्तफ के 5 सफ़ात पढ़ेंगे, तो अब इसके लेसन कैसे? हर सफ़े को यानी 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 4 हिस्सों में। तो इस तरह से 5 × 4 जो है वो 20 बन जाता है। तो 20 लेसन होंगे और हर सेशन में आप 2 लेसन करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि 10 सेशंस में हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, जैसे हमारा QC1 होता है। पार्ट ए में कुरानिक पोर्शन होता है, पार्ट 2 में ग्रामर होती है, और ग्रामर में कमजोर अफ़ाल, कमजोर कमजोर कमजोर, तो इनको फिर कमजोर क्यों कहा गया वगैरह वगैरह, ये बड़ी अच्छी इसके बारे में कुछ कहानियां हैं, वो हम आपको सुनाएंगे और समझाएंगे, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। और ये जो कमजोर अफ़ाल हैं ये किसी से कम नहीं है, सेहतमंद से भी कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपका 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो QC2 है, QC2 इस कोर्स को पढ़ लेने के बाद आपको कुरान की हर लाइन में से 2 नए अल्फाज मिलेंगे। तो डेटा ये कहता है कि ये 80% आपको मालूम हो गया, मालूम 80% आपने जान लिया, सिर्फ 20% वर्ड्स आपके रह जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसमें 1 नया लफ्ज है, इसमें 2 नए हैं, इसमें 3 है, तो ऑन द एवरेज आप समझिए कि 2 नए अल्फाज आपके रह जाएंगे। इसलिए रह जाएंगे कि QC2 के बाद QC3 है, फिर 4 है, तो स्टेप्स बनाए गए हैं बाकायदा टॉपिक वाइज। अच्छा, ये हाथ कहाँ से आ गया? जो QC1 के लोग हैं उनको तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि ये हाथ का क्या मतलब। तो चलें, अब जो QC2 के लोग हैं उनमें से कोई बताए कि ये हाथ क्या कह रहे हैं, ये किस चीज के लिए, ये 1 2 3 4 5 क्या है? आप में से कोई एजुकेट करें ना अपने QC1 के साथ में। टीचर मैं करूं? जी जी सुन। नबीला, ये जो 1 है ना, ये मुसहफ का पहला पेज है, और जो दरमियान में 2 साथ होते हैं ना, ये दूसरा और तीसरा है। फिर ये जी चौथा और 5वां, ये जो आगे हम उसका पेज पढ़ेंगे ना, ऐसे आमने सामने जो 2 जी, ऐसे बिल्कुल ठीक है, ये 2, बिल्कुल ठीक है। ये ये जो है ना, दूसरा और इन दोनों को तीसरा। तो मैंने कंबाइन करके एक बना दिया, हाँ क्योंकि ये जी, सूरह और फातिहा थी ना, उसके बाद हाँ जी यूं कंबाइंड आपको ये जुड़े हुए हैं, ये वाले। ठीक है, जी, 2 ये पेज, 2 ये और पेज, 2 ऐसे 2 इससे। 2 ये हाँ पेज, जी, इस तरह से। तो ये हमारा QC2 का पैटर्न होगा। इसको हम अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों के ऊपर इसको लेंगे, और ये हम आपको अभी टाइम देते हैं, आप अपने हाथ को इस तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, ये आपने ये इस तरह से करने की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप QC2 के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इन 5 सफ़ात के ऊपर हम क्या करेंगे कि इशारात के नाम इनको देंगे। तो ये इशारात का सिस्टम क्या है, ये टॉपिक वाइज समझे ना, कि उन्वान है, जिस तरह आप देख रहे हैं अल्लाह की तारीफ, ये पहला इशारा आ गया। फिर हिदायत की दुआ, सूरतुल फातिहा से मुतालिक 2 इशारात होंगे, ये आपने देखिए। उसके बाद फिर सूरतुल बकरा की इब्तिदाई 5 आयात से मुतालिक 2 इशारात होंगे कि मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। तो ये देखिए, ये जो आपसे इशारों की बात हुई, इस तरह से ये इशारात आते। कैसे? तारीफ, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। ऊपर से हम शुरू करेंगे अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन। आगे हिदायत की दुआ इहदिना सिरातल मुस्तकीम से लेकर एंड तक। उसके बाद मुत्तकीन के लिए हिदायत क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, जब यहाँ पे सूरतुल बकरा का बिल्कुल आगाज। और उसके बाद मुत्तकीन की जो 5 सिफात बताई गई हैं वो आखिर में आती हैं। इसका क्या फायदा होगा? इसके बहुत सारे फायदे होंगे, अभी आप देखिए इशारात के फायदे। कि इसकी मदद से क्या होता है कि मजमून का पता चलता है कि इस पेज पे क्या मजमून डिस्कस हो रहा है। इशारात फिर एक जंजीर का किरदार अदा करते हैं। जंजीर कैसे? इस तरह से चेन बनती जाती है। क्या होता है कि पीछे से आगे का रिलेशन होता जाता है, तो हम उसको एक दूसरे के साथ रिलेट करके जोड़ते जाते हैं, जैसे लूप्स में लूप्स डालते जाते हैं, तो हमें मानी की पूरी सेंस जो है ना वो हमारे साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, इस तरह की इसके बारे में आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आएगा। पूरे सफ़े के मज़ामीन को एक दफ़ा ना माइंड मैप के जरिए जहन में लाया जा सकता। और फिर ये कि अगर थोड़ा सा हिफ्स करने की भी हिम्मत करें आप लोग, तो ये इशारात उस सिलसिले में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यानी सूरतुल बकरा जब शुरू करेंगे QC2 में, तो साथ साथ जितना हिस्सा एक वीक में हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा होगा, चंद आयात। आप उस वीक के दौरान वर्कबुक भी क्या करेंगे, अपना गूगल फॉर्म का होमवर्क भी क्या करेंगे। तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप उसको हिफ्स भी कर लेंगे। आप में से कुछ लोगों को सूरतुल बकरा का कुछ हिस्सा याद होगा, यकीनन शुरू का कुछ याद होगा, एंड का कुछ याद होगा, लेकिन आप इसको पूरा भी याद कर सकते।
تو میں نے جب QC2 کیا تھا تو میں نے پوری سورۃ البقرہ اپنے کورس کے ساتھ یاد کی، پوری سورۃ البقرہ کورس کے ساتھ کی تھی۔ میں اب بہت کانفیڈنٹ نہیں ہوں کہ مجھے سورۃ البقرہ اس طرح سے اب یاد ہے، کیونکہ میری دہرائی اس طرح اتنی اچھی نہیں ہوئی، بہت سے پورشنز میرے ویک ہیں، لیکن پھر بھی میں نے اس وقت یاد کی تھی۔ تو مجھے بڑا افسوس رہتا ہے ہر وقت کہ میں نے اس کی ابھی تک دہرائی نہیں کر سکی اچھی طرح سے، لیکن میں انشاءاللہ کروں گی۔ تو آپ لوگ بھی کریں، کچھ لوگ میرے ساتھ جو ہے نا وہ کر لیں کہ چلیں جی ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی پھر ریگولر ہو جاؤں اور آپ میں سے ہم کوئی گروپ بنا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈویبل ہے، بالکل ڈویبل ہے، آپ لوگ کیجیے گا، کوشش ضرور کریں۔ اچھا یہ کیا چیز آ گئی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا R5S10 لاؤڈ، یہ بھی ایک فارمولا ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا فقرہ پڑھیں گے تو اس فارمولا کو استعمال کریں، پہلے تو ریلیکس ہو جائیں، اپنے سارے 5 سینسز کو یوز کریں۔ 5S کا مطلب ہے 5 سینسز، حواس خمس، یعنی سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا۔ آپ کو یاد ہے جو ہم QC1 میں نکات تعلیم کیا کرتے تھے، اس میں بھی کچھ اس طرح کی سٹوریز آئی تھی۔ ایک ایلیفنٹ والی سٹوری آئی تھی کہ ایلیفنٹ کو ہاتھ لگایا ہو، تھوڑا سا اس کو مطلب اس کی آواز سنی ہو، میں بھی ٹچ کیا ہو، دیکھا ہو بہت دفعہ، لائیو دیکھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو پھر اگر کوئی بتائے کہ یہ فیل ہے تو آپ کو یاد رہے گا کہ اچھا فیل یہ اینیمل ہوتا ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نیا فقرہ یا نئی ووکیبلری کوئی آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ کافی ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی چیز سے اگر ریلیٹ نہ کر پائیں تو بھولتا ہے ہمیں نا، کیونکہ ہم اس کو رٹا فائی تو کر نہیں سکتے۔ قرآن میں تو ایسے بہت سے الفاظ آئیں گے عربک میں۔ تو بہرحال اس کے لیے انہوں نے کچھ ٹپس آپ کو دی ہوئی ہے کہ آپ ایک تو ریلیکس ہو جائیں، ٹینشن نہ لیں، اپنے 5 سینسز میں سے جو سینس اپلیکیبل ہے اس کے ساتھ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ کہ کم سے کم 10 سیکنڈز تک آپ اس کام کو کریں، یعنی دہرائیں، اور تھوڑی سی اونچی آواز سے بھی کریں، لاؤڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا آپ کو ابھی آپ کے لیے ایک نئی بات لگے گی، ہو سکتا ہے تھوڑا سکل آپ کو لگے کہ یہ کیا ہے، بہت ہی ہیوی سا کوئی فارمولا بتا دیا۔ تو یہ دیکھیں یہ فن کا فارمولا ہے، اٹس ویری ایزی، جب کورس شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا وہ گڈ اولڈ لوگو جس کے ذریعے ہم ہمیشہ مطالعہ، غور و فکر، تصور، احساس کو ڈیولپ کرتے ہوئے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، اپنا پلان بناتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس میں سے جو اسباق ہم ڈیرائیو کرتے ہیں ان کو ہم اپلائی کریں گے اپنے لیے، تاکہ ہمیں اس کا پریکٹیکلی بینیفٹ ہمیں خود بھی ہو اور دوسروں کو بھی ہو۔ اور عربی بول چال کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ QC1 میں بھی ہم جتنے بھی افعال کرتے تھے ہم ان کو عربک ڈائلاگس میں یوز کرتے تھے تاکہ ہمیں وہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو اس طرح سے ایک صرف بہت ہی ایکٹیو سا ایک ماحول رہتا ہے، انٹرسٹنگ ماحول رہتا ہے، انٹریکشن ہوتی ہے کلاس میں، مطلب جو بھی آپ نے نیا کوئی فعل پڑھا خاص طور پہ، تو فعل کے الفاظ کو ہم چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں، پرانی ماحول سے جڑے ہوئے جملے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسے جملے نہیں ہیں کہ ھذا بیت کبیر، یعنی کہ جن کا کوئی ہمیں قرآن میں استعمال نہیں ملتا نا، عام کنونشنل عربک کے کچھ، ٹھیک ہے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے اسپوکن عربک کی، لیکن ہم اس ٹائپ کی اسپوکن عربک یہاں پہ یوز کرتے ہیں جس طرح کے فقرے قرآن میں موجود، ٹھیک ہے، ڈائلاگس قرآن میں بھی ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے۔ اچھا جی، اب وہ جو کمزور حروف کی بات ہوئی تھی، تھوڑا سا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی جانتے ہیں، کسی کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہو گیا اچانک، ان کو کیا ہو گیا، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ بیمار، کوئی بتا، کوئی بیمار ہو گیا، ڈرپ لگی ہوئی ہے کسی کو، ڈرپ لگی ہوئی ہے نا کسی کو، تو کیوں لگ گئی؟ کیونکہ وہ ہم کمزور وہ کمزور ہے۔ حروف ہیں، تو انہوں نے کہا کہ واو یا الف جو ہے کمزور حروف ہیں۔ تو جب یہ کسی فعل کے حروف یعنی مادہ میں آ جاتے ہیں تو وہ پورا کا پورا فعل جو ہے نا وہ کمزور فعل کہلاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو بیمار آدمی جو ہے نا وہ آوازیں نکالتا ہے نا، وہ آئی وائی اس طرح کی ہائی ہائی ٹائپ کی کچھ آوازیں نکالتا ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے تھوڑا سا ایک فن ٹپ دی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حروف مادہ کیا ہوتی ہے نا، وہ جو آپ نے شروع میں فعلا پڑھا تھا نا، وہ بھی آپ نے یہ QC1 والوں کی بات ہو رہی ہے، QC2 والوں کی دہرائی ہو رہی ہے، فعلا، فتح، جعلا، سمیع، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا تھا یہ ایکچولی حروف مادہ ہوتے ہیں۔ اب بات یہ آگے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ جو 3 حروف تہجی کے الفاظ ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر حروف تہجی کے کمزور حروف میں سے کوئی ایک حرف آپ کے فعل کے حروف مادہ کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ پورا فعل کمزور فعل کہلاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص ہی کمزور ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس سے ہیوی کام نہ کروائیں، ان کا ہاتھ ذرا کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو عربی گرامر میں اس طرح کے افعال کو کمزور افعال کہا جاتا ہے،
بہت ایزی بات ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے نئی بات لگے لیکن بہت آسان لگے گی آپ کو. تو یہ آپ نے پڑھے QC1 میں, فتح, نصر, ضرب, سمیا. ٹھیک ہے, فتح کے نیچے کتنے پڑھے تھے ٹوٹل؟ 3 کوئی بولتا جائے. 3. نصرہ میں 4 ضرب کا ایک 1, ہی ہے. سمیا 3, 3 ٹوٹل بنے 11. QC1 میں 11 افعال, اور یہ صحت مند افعال کہلاتے ہیں. قرآن میں یہ 9000 ٹائمز آئے ہیں. اب مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ 9000 مرتبہ آنے میں کیا خاص بات ہے؟ کوئی ایک بات ہے اس سے متعلق. پوری قرآن کی پیج جو ہے نو سر ہر لائن میں ایک بار. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں نمبر آف لائنز کتنی ہے؟ 11 9000. کیسے 9000 کیسے 15 لائنوں والا مصحف ہے, اور مصحف میں ٹوٹل پیجز کتنے ہیں؟ 600 از اکول ٹو 9000. یہ ڈیٹا آپ نے یاد کرنا. QC1 سے آپ نے یہ ڈیٹا اس کو سیکھا تھا, اس کو ذرا ہینڈی رکھا. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر صحت مند افعال ہر لائن میں ایک مرتبہ آئیں یعنی 9000 بار, تو کمزور افعال بھی کچھ کم نہیں, وہ بھی اتنی ہی اکرنس رکھتے ہیں, اتنی ہی فریکوینسی رکھتی ہیں, لہٰذا وہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں. وہبا میں واو کمزور ہے, وعدہ میں واو کمزور ہے, قالا میں الف کمزور ہے, زادہ میں الف کمزور ہے, اینڈ سو آن, بہت سارے اور بھی آئیں گے. لہٰذا ہر لائن میں ایک بار. یہ وہ بات آ گئی جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کر. ٹھیک ہے جی. تو کمزور حرف ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع میں آئے, آ سکتے شروع میں, تو درمیان میں بھی آ سکتے ہیں, بیچ میں یعنی کہ یہاں پہ بھی آ گیا, اس کے بعد یہ اینڈ میں بھی آ سکتا ہے, ایسے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان افعال کو ہم نے تفصیل سے سیکھنا ہے. ابھی تو ہم انٹروڈکشن دے رہے ہیں اپنے QC1 کے ساتھیوں کو جو گریجویٹ ہو رہے ہیں آج. تو ان کے ٹیبلز ویسے ہی بنتے ہیں, بس تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا صحت مند افعال کا سلسلہ QC1 سے متعلق. یہ ہے ہمارا کمزور افعال کا پورا ایک آپ کو دکھایا گیا ہے, ایک اوور ویو دیا گیا ہے کہ آپ وہبا, وعدہ جیسے افعال پڑھیں گے, کالا, زادہ, دعا, ہدا, ظنا, واللہ. اب دیکھیے کہ قرآن میں تو آپ کو یہ اس سے کچھ مانوسیت ان الفاظ سے تو لگ رہی ہے. ہر جگہ پہ قالا, قالو وغیرہ آتا ہے نا قرآن میں, قل آتا ہے. اسی طرح سے رب زدنی علما میں آپ نے پڑھا ہوگا, ہدا کا لفظ آپ نے قرآن میں, ہدن پڑھا ہے آپ نے, بہت سے یہ سارے الفاظ آپ نے, زنا بھی پڑھا ہے, اللہ بھی پڑھا ہے. یہ جو شاء, رضیہ, مسا وغیرہ, اس کے علاوہ امرا, سأل, قرأ, یہ سب افعال آپ نے قرآن میں یقیناً دیکھے ہوں گے. یہ آپ نے QC2 میں پڑھنے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ان کے جو ٹیبلز بنائے گئے ہیں, اور بہت آسان فہم ہے. دیکھیں یہاں تک آپ کا QC2 کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا. تو QC2 مجھے بتائے گا کہ QC1 کا کوئی اسٹوڈنٹ کہ ابھی تک تو آپ نے QC2 کا انٹروڈکشن دیا, کیسا لگا آپ کو؟ کچھ مشکل تو نہیں لگا؟ ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں میم, ایزی لگا ہے. اچھا لگا نا؟ بہت پریکٹیکل ہے, یقین کریں اتنا پریکٹیکل ہے QC2 کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو اصل وہ کام ہے جو مجھے کرنا تھا. یعنی دیکھیے قرآن کے پہلے صفحے سے آپ شروع ہو گئے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ گرامر پڑھنے میں صرف اسے بکس پڑھائی جاتی ہیں, گرامر کی بہت ڈرائی ہو جاتی ہیں, بہت ہیوی ہو جاتی ہیں اس طرح کے رولز پڑھنا, اور پھر قرآن پہ بہت دیر بعد لایا جاتا ہے, یا قرآن الگ پڑھایا جاتا ہے, گرامر الگ پڑھائی جاتی ہے. لیکن ان کورسز کی خوبصورتی یہ ہے کہ گرامر بہت پریکٹیکل انداز میں پڑھائی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ قرآن کی آیات کے اوپر ان کی اپلیکیشن سمجھائی جاتی ہے, اور قرآن کی آیات کی بریف انٹرپریٹیشن, اس کی تفسیر ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھتے جاتے ہیں. تو یہ اس کورس کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے آغاز ہی قرآن سے کیا, پہلے نماز سے کیا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی, اب آپ ڈائریکٹلی قرآن سے آغاز کریں. ہمارے QC2 کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کتنی آیات پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی, یاد ہے کتنی پڑھی تھی؟ آیت نمبر 1 سے لے کر 37 تک پڑھی تھی QC2 میں. ٹھیک ہے جی, اتنی آیات آپ نے پڑھ لی تھی. اب QC3 کا اگر انٹروڈکشن لے لیں تو ایسا آپ کا آئے گا پہلا پیج, اس کے بعد یہ آپ کی بک ہے QC3 بک اینڈ ورک بک اس ٹائپ. ٹھیک ہے جی, QC2 کی بک میں دکھا دوں میں QC1 کے لوگوں کو. میری بکس تو پرانی ہیں, اور جن کی بکس پرانی اور پھٹی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کافی اس کے ساتھ یعنی محنت کی ہے نا. تو مجھے اپنی, میرے پاس نئی بکس ہوتی ہیں لیکن مجھے اپنی پرانی بکس میں نوٹس ملتے ہیں نا, تو وہ پڑے ہوتے ہیں ساری چیزیں, تو بہت قیمتی ہوتی ہیں ہمارے لیے. تو کورس 3 کے مقاصد بھی تقریباً ویسے ہی ہیں. دیکھیے آیت نمبر 38 سے سٹارٹ لے لیں گے اور 76 تک چلے جائیں انشاءاللہ. یعنی ہم نے نیکسٹ 5 صفحات مصحف کے پڑھ لیے. پہلے 5 صفحات ہم نے پڑھے تھے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا,
कौन बताएगा मुझे? अब QC जिन्होंने पास अब किया? लेफ्ट हैंड से चलेगा, ऐसे लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों के ऊपर चलेगा, हम थंब QC3 को एंड में लेकर आ रहे जाएगा। हैं, ठीक है? और QC3 अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, अब यहाँ से शुरू, अभी आपको दिखाते हैं। तो QC1 के एंड पे उन्होंने कहा था कि आपने नहीं 2 के एंड पे कहा था कि आप 80% ऑफ वोकैबुलरी जान लेंगे। अब आपको बताया जा रहा है कि आप 90% वोकैबुलरी जान लेंगे, यानी उसमें यह था कि हर सतर में 2 अल्फाज रह जाए, 2 रह तो इसमें तो जाए, ऐसे था ना, 2 रह जाएंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 1 रह जाए, हर सतर में सिर्फ 1 नया लफ्ज आपका रह जाएगा, जो कि QC4 में जाके कवर हो जाएगा। और हो सकता है ना भी कवर हो सकता है स्टिल, मतलब हम लोग QC7 में हैं, हमें भी नए अल्फाज से कभी कभार वास्ता पड़ता है, ठीक है? क्योंकि कुरान है तो आपको पता है कि पारा नंबर 30 तक नए अल्फाज आते हैं और नई समझे ग्रामर भी आती रहेगी, बल्कि 30 पारा तो काफी मुश्किल होता है ना, आखिरी पारे बहुत मुश्किल है ग्रामर के लिहाज से, बलागत के लिहाज से। इशारे और फिक्रे वही जो QC2 का कॉन्सेप्ट है वो QC3 में लेके चलेंगे। कुरान को जिंदगी में उसी तरह से लाने के लिए कुछ ना कुछ सोचो विचार करेंगे, कोशिश करेंगे। TPI ने हमारे लिए आसान कर दिया। पहले हमने QC2 में सीखे कमजोर अफआल, और अब हम क्या सीखने जा रहे हैं QC3 में? कौन बताएगा? जिसने मजीद फी। और आपको पता है ये मेरे मोस्ट फेवरेट अफआल है मजीद फी, और आपको मैं सच बताऊं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ QC3 पढ़ाने के लिए, ठीक है ना? QC3 भी वैसे आप लोगों की फरमाइश पे मैं पढ़ा रही थी, पहले मेरा ख्याल नहीं था क्योंकि टाइम नहीं था वीक में, लेकिन फिर इस दफा मैंने अपने थोड़ा सा उसको निकाला टाइम, क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक है QC3 पढ़ाने का। इसके जो मजीद फी अफआल है ये इतने प्रैक्टिकल, इतने आसान, इतने मजे के हैं, यकीन करें कि ये जो QC2 से भी आसान है, लेकिन खैर QC2 भी आसान है। ये ना QC1 के बच्चे कहें कि हम तो डायरेक्ट जंप लगाएं कि QC3 नहीं, QC2 भी बहुत आसान है और 3 भी, तो जंप आप लगा नहीं सकते, आपने बिल्कुल तरतीब से ऐसे चलना। चले जी, कुरान के जुमले आप फिर सीखें। ये आ गया आपका QC3 का हाथ। कैसे? वहां पे थंब से स्टार्ट हुआ था ना, थंब से पहला सफा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहाँ पे यूं होगा 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10th पेज, ठीक है जी? अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से वही इशारात का कॉन्सेप्ट कि आपके सामने ये 6ठा सफा खुल गया, 5 सफे आप QC2 में कवर कर चुके, 5 सफे आपने कवर कर लिए, 6ठा सफा यहाँ से शुरू हुआ, वही इशारात का अंदाज है। हिदायत और नतीजा ऐसे आएगा, हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। अभी जो QC1 के लोग हैं ना, वो उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा हो, कहेंगे ये कैसी बातें हो रही हैं, तो हमने QC2 में थ्रू आउट करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए आपको इस फिंगर पे ये दिखा दिया गया है जो मैंने अभी बोले थे, हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। तो उसी तरह से जैसे QC2 में हम करते थे ना, ये एक तारुफ लेते थे, तर्जुमा तशरीह करते थे, असबाब, फिर हम क्या करते थे कि इस पैराग्राफ में कितने अस्मा आए हैं, कितने अफाल आए, बिल्कुल वही पैटर्न होगा। तो इसलिए टेक्स्ट के पोर्शन को अभी हम यहाँ पे इतना आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि वो बिल्कुल QC2 की तरह ही चलेगा ना, तो हम आपको थोड़ा सा मजीद भी अफाल का एक हल्का सा टच दे देते हैं कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। इंतहाई यूजफुल ये जो मजीद फी होता है ना, ये उर्दू से रिलेटेड होता है, ये उर्दू समझे, ये उर्दू है, आपको बहुत मजा आएगा मजीद फी अफाल पढ़ के। और मुझे पढ़ाने का बहुत मजा मुझे लग रहा है ना कि मैंने बहुत इंजॉय करना है QC3 में, तो आप लोग मेरे साथ बड़े वो एक्टिव होके रहिएगा इंशाल्लाह। आप पढ़ेंगे अल्लमा युअल्लिमु, तालीम, हासबा युहासिबु, मुहासबा, अस्लमा युस्लिमु। अब आप कहेंगे ये क्या हो रहा है ना, ये एक्स्ट्रा कौन से अल्फाज कर रहे हैं? तो इनका टेबल है माजी मुदारिन, इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तिलाफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तिगफार एटसेट्रा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे इत्तका, अकामा, इस्तकामा, वल्ला, नादा, अलका, इहतदा, अदल्ला। अब है तो यही, आपने गला का टेबल पढ़ा है, अब यहाँ पे अदल्ला आ गया। आपने आलिमा का टेबल पढ़ा है, अब यहाँ पे अल्लमा आ गया। तो हरूफे मादा वही हैं और इनकी जो है इनमें कुछ एडिशंस आ गई हैं, इसकी वजह से इसको मजीद फी अफाल कहेंगे। मजीद फी में भी एक और बाइफर्केशन हो जाती है कि उसमें भी सही भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं। कमजोर वालों को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने मध्यम दिखाया है, डिम दिखाया है। क्यों, क्या वजह इसकी? ये जो डिम दिखाई गई इनकी वजह बताइए, सोचे गेस करें। सीखने के लिए जी, फर्क बताने के लिए। ये देखें, ये पढ़े ये क्या लिखा हुआ है? हल्के रंग में लिखने अल्फाज में अगले रंग को QC4 क्यों तो करना है, ये QC4 के हैं सारे, ये टॉपिक यही है।
टॉपिक यही है, ठीक है? लेकिन हम इनको फिर आगे जाके पढ़ेंगे, बिकॉज अभी हम जो सेहतमंद अफाल हैं उनको मजीद फी बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल ना डरें। QC3 का इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिया, यानी QC3 में क्या नई बात है, चलिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको। जैसे QC2 था ना, इस हाथ के ऊपर हमने 5 मुसहफ के पेजेस डिवाइड किए थे ऐसे। QC3 में इस हाथ के ऊपर हमने मुसहफ के अगले 5 सफ़ात ले लेने। तो QC2 के एंड पे आपने 5 पढ़े, QC3 के एंड पे आपने 10 मुसहफ के पेजेस कंप्लीट कर लिए। अचीवमेंट क्या हुई कि आपके पास हर लाइन में तकरीबन आपको कोई एक आध लफ्ज, एक या ऑन द एवरेज समझे 1 या 2 कुछ नए अल्फाज मिल जाएंगे। 90% अल्फाज तो आप सीख ही लेंगे QC3 में, यानी वोकैबुलरी वाइज, वोकैबुलरी, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनका बाब क्या है और उनके मीनिंग्स क्या है वगैरह वगैरह, इस्तेमाल क्या है उनका, ठीक है जी। फिर क्या होगा कि QC2 का मेन टॉपिक है कमजोर अफाल, जो कि ग्रामर का टॉपिक है। QC3 के ग्रामर का मेन टॉपिक क्या है? मजीद अफाल। बस ये आपने याद रखना है आप सब लोगों के लिए, जो इवन जो हमारे QC1 के लोग हैं जो अभी 2 में जा रहे हैं, उनको भी अंदाजा हो गया कि 2 के बाद क्या होने वाला है। तो आप लोग जल्दी समझदार हो गए, जल्दी आपको एक विजन मिल गया कि अच्छा QC3 में मजीद फी हमने पढ़ना है। तो इस तरह से होता है ना कि आप थोड़ा वो रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं कि अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, और कभी भी आप ये इतना रिलैक्स नहीं हो सकते कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि एक कोर्स हमें वाकई बहुत कुछ सिखाता है। हमें QC1 भी बहुत कुछ सिखाता है, बहुत, और लोग QC1 को कई मर्तबा रिपीट करते हैं। अभी मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग QC1 को रिपीट भी कीजिएगा, चाहे एज अ लिसनर आ जाए, हमारे पास आ जाए, या किसी भी टीचर के साथ जो भी आपको टाइम सूट करता है, आप QC1 में भी दोबारा रजिस्टर हो, और QC2 के लोग QC2 को भी दोबारा रिपीट करें, QC2 के लोग 1 को भी रिपीट करें। यकीन करें कि ये जो रिपीट करना है ये बहुत फायदेमंद होता है। इसको ये ना समझें कि ये हमारे लिए, हम तो सीनियर हो गए हैं, हम कैसे रिपीट करें। हम लोगों ने भी ये कोर्सेज बहुत मर्तबा किए हुए हैं, और उसके बाद हमने अपने टीचर्स को असिस्ट किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स जिस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इस तरह हम सब ने किया हुआ है अपने बचपन में, ठीक है जब हम QC सिस्टम में आए थे, तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। कौन है, मैं भी ये सोच रही थी, पता नहीं किस बारे में उन्होंने बताया, सिस्टम में डायरेक्ट मैसेज आया था। चले जी, अब हो गया स्टोरी टाइम। ये स्टोरी कुछ लोगों ने तो सुन रखी है जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है। दोबारा सुनने का ये तो नहीं समझ रहे कि हमें दोबारा सुननी पड़ेगी ये स्टोरी। आपको पता है ये स्टोरी कितनी दफा पढ़ें, कितनी दफा सुने, तब भी कम है। जितना भी इसको एब्जॉर्ब करें, जितना भी इसको देखें, उतना ही कम है। कोई एंडोर्स करेगा मेरी बात को कि ये आसिम की कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए? ये हम सब की कहानी है, ये सिर्फ आसिम की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। तो तैयार है आप लोग? सुने आसिम की कहानी? जी। कुछ अंदाजा है ये क्या थी आसिम की कहानी, किसके बारे में? याद है? ये भूल गई? भुलानी नहीं है ना ये मैं इसलिए आपको दोबारा से याद दहानी कराना चाहती हूँ। सब लोग मुतवज्जे हैं, बिल्कुल रेडी हैं, सुनना चाहते हैं? जी यस मैम। चलें शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह, गौर से सुनिए। एक दिन आसिम और उसकी फैमिली ने, उसके बीवी बच्चों ने फैसला किया रहला पे जाने का और दुनिया की रंगीनियां देखने का। ये रहला क्या होता है? इलाफिहिम रहलत, वो क्या था? सफर। उन्होंने सफर पे जाने का इरादा। कौन सा सफर होगा? उनका सफर शुरू हुआ, कौन सा सफर होगा? कोई लॉन्ग ड्राइव, जिंदगी का सफर। इसको समझे, उनकी जिंदगी का सफर है, हमारी और आपकी जिंदगी का सफर। चलते चलते रास्ते में एक शख्स खड़ा मिला। आसिम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं माल हूं, माल। आसिम ने अपनी बीवी बच्चों से पूछा, क्या ख्याल है, क्या हम इसको साथ में बिठा लें? सबने कहा, जरूर, क्यों नहीं, हमें इस सफर में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी और इसकी मौजूदगी में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सही बात है ना, माल से ही हम सब कुछ हासिल करते हैं, अच्छी बात है। मैं तो समझती हूँ कि दीन का काम भी तो माल से ही होता है ना। माल होगा तो दीन की खिदमत भी करेंगे, दुनिया का भी। जाहिर है हम सबको एक ख्वाहिशात हैं हमारे अंदर, नेचुरल बात है बिल्कुल। आसिम ने माल को भी अपने साथ बिठा लिया और वो लोग आगे बढ़ गए। जब थोड़ा आगे गए तो एक और शख्स खड़ा हुआ नजर आया।
आसिम ने फिर पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं मनसब व मकाम हूँ। ठीक है, मनसब व मकाम क्या होता है? ओहदा, मतलब स्टेटस और इख्तियारात, कुर्सी। ठीक है, आसिम ने अपनी बीवी बच्चों से पूछा, क्या ख्याल है, इसे भी साथ बिठा लें? सबने कहा, जरूर जरूर, क्यों नहीं, हमें इस सफर में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी और दुनिया की लज्जतों का हसूल इसकी मौजूदगी में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है सिफारिश वगैरह करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है, कुछ काम करवाने पड़ते हैं, तो स्टेटस होता है, कुछ अफसरान हमारे वाकिफ होते हैं, फैमिली में होते हैं, तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं ना। तो आसिम ने उसे भी अपने साथ बिठा लिया, यानी अब उसके पास माल भी है, मनसब, ओहदा, इख्तियारात, बहुत कुछ है। तो सफर जारी रहा, मजीद आगे बढ़ते गए वो लोग। इसी तरह सफर में कई किस्म की लज़्ज़ात और शहवात से मुलाकात होती रही। बहुत सी रंगीनियां है ना दुनिया की, हमें मिलती रहती है, नजर आती रहती हैं। मसलन घूमने फिरने के चांसेस मिल गए, दुनिया देखने के चांसेस मिले हमें। इसके अलावा और बहुत सारे मौके मिलते रहे, एक्सप्लोर किया हमने अल्लाह ताला की नेमतों को, इस जमीन को घूमे, देखा, सब कुछ फायदे उठाए, तोहफे तोहफ लाए, खरीदे, सब कुछ किया, बहुत कुछ किया। आसिम सबको आगे बिठाता रहा, जो भी चीजें उसको मिलती रही ना, ये सब चीजें जो मिलती रही, उनको बिठा लिया गाड़ी में और फिर आगे बढ़ते रहे, खुश खुश रहे वो और उसकी फैमिली के। दुनिया में जो कुछ हम चाहते हैं हमें मिल रहा है ना, माल भी, औलाद भी, औलाद तो उसके साथ ही थी, और बाकी ये सब चीजें, एडिशनल चीजें जो दुनिया की जीनतें हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक और शख्स से मुलाकात। आसिम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं दीन हूँ, दीन, दीन। आसिम ने अपनी बीवी बच्चों से पूछा, क्या इसे भी साथ बिठा लें? क्योंकि जाहिर है कि एक नेचुरल हमारे अंदर दीन की तलब तो है ना, यानी सबके अंदर है दीन की कोई मोहब्बत, कोई लगन, कोई कुछ ना कुछ डेफिनेटली हमारे अंदर कुदरती तौर पर है। सबने कहा कि अभी नहीं, ये वक्त दीन को साथ ले जाने का नहीं है, अभी हम दुनिया की सैर करने और इंजॉय करने जा रहे हैं। तो क्या होगा कि दीन तो हम पर बिला वजह हजार पाबंदियां लगा, पर्दा करो, हलाल हराम देखो, नमाजों की पाबंदी करो, और भी बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देगा। तो कहीं फन पे गए हुए हैं, किसी पार्टी में गए हुए हैं, बीच में नमाज का टाइम आ गया, अच्छा अगर अब ये कैसे वजू करें, कैसे नमाज पढ़ें, वो तो बुरा लगेगा, लोगों के सामने एम्बेरसमेंट होगी, म्यूजिक लगा हुआ है वगैरह वगैरह। अब हलाल हराम क्या सब लोग खा रहे हैं, मैं पूछना शुरू कर दूँ ये हलाल है ये हराम है, बस ठीक है जो भी है, हम बाहर के मुल्क में रहते हैं, ऐसे चलता है वगैरह वगैरह, पर्दा तो है ही बहुत मुश्किल एक्सेट्रा, और हमारी लज्जतों में रुकावट पैदा करेगा। ये जो सारा है ना दीन का सिलसिला, ये हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है इसको अभी रहने दें, बाकी सब चीजें माशाल्लाह हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी खुशगवार गुजर रही है, तो ये दीन को बीच में क्या घुसाना। मॉडर्न लोग हैं हम, सारी फैमिली मॉडर्न है, तो हम क्या बीच में मौलवी बन के बैठ जाए, नहीं अभी छोड़े इसको। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि रहला से वापसी पे हम इसे साथ बिठा लेंगे। तो रहला से वापसी यानी आप समझ लें कि थोड़े से बूढ़े हो जाएं, जिंदगी गुजार लें, एंजॉय कर लें, सब कुछ कर लें, तो वापसी में करेंगे। तो इस तरह वो दीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते गए। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, हमें से अक्सर लोगों का ये होता है कि हज वगैरह चलें बुढ़ापे में करेंगे, या नमाजें, अक्सर बूढ़े लोग रिटायरमेंट के बाद नमाजें वगैरह शुरू करते हैं क्योंकि उनको टाइम उस वक्त मिलता है ना। अच्छा ये क्या हुआ, चलते चलते आगे एक चेक पोस्ट आ जाती है, स्टॉप स्टॉप। वहां खड़ा शख्स आसिम से कहता है कि वो गाड़ी से उतरे। आसिम गाड़ी से उतरते हैं, तो समझा कि कोई चेकिंग करनी है या कुछ, तो वो शख्स कहते हैं, तुम्हारे सफर का वक्त खत्म हो चुका, मुझे तुम्हारे पास दीन की तफ्तीश करनी है। आसिम कहते हैं, दीन को तो मैं कुछ ही दूरी पर छोड़ आया हूँ, मुझे इजाजत दो, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। वो शख्स कहते हैं, अब वापसी नामुमकिन है, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आसिम कहते हैं, मेरे साथ तो मेरा माल है, मनसब, मकाम, बीवी, बच्चे, सब कुछ है, ये देखें माल, एवरीथिंग, सब कुछ है। वो शख्स कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारा मनसब और औलाद कोई भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता, क्रॉस 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 नहीं बचा सकता।
दीन सिर्फ तुम्हारे काम आ सकता था जिसे तुम पीछे छोड़ा है। दीन दीन। आसिम पूछता तो वो कौन, कि ये कौन है जो मुझसे इस तरह की इतनी तफ्तीश कर। तो वो कहता है कि मैं हूं मौत, मौत जिससे तुम मुकम्मल तौर पर गाफिल थे, अमल को भूले रहे। आसिम ने डरती नजरों से गाड़ी की तरफ देखा। इमेजिन करें, उसके बीवी बच्चे उसको अकेले छोड़कर माल और मनसब को अपने साथ लेकर अपने सफर को मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ गए। जाहिर है जब हम मर जाएंगे तो हमारे फैमिली तो नहीं ना साथ जाती ना, सिर्फ छोड़ने जाती है कब्रिस्तान तक। ये तो नहीं ना कि कोई मरने वाले के साथ मरता तो नहीं है ना। अब कोई एक भी आसिम की मदद के लिए न रुका, न आगे बढ़ा, न साथ। उन्होंने तो अपनी जिंदगी का सफर पूरा करना है ना, हर एक ने अपनी अपनी जिंदगी का सफर पूरा करना है। तो एंड हमारा होगा यहाँ पे। और आप देखेंगे कितनी एक जैसी ये जगह है। इसमें कोई फर्क है, इसके डिजाइन में कुछ फर्क है? क्या दिखाया गया है? चलिए आप में से कोई एक्सप्लेन करे, ये पीछे के सीन से रिलेट करें जरा इसको, ये करें। जी टीचर, ये क्या लग रहा है? जितना भी माल, ओदा, घर, बड़ा हो, जो भी हो, जाना एक ही जमीन में, मट्टी में कब्र एक जैसी होगी सबकी। किसी को इजाजत नहीं है कि इसमें रद्दो बदल करे कफन और ये पीछे उनकी रिहाइश इस किस्म की थी, यहाँ पे इस किस्म की है। लेकिन मैटर नहीं यहाँ पे जो आखिरी सुकूनत मिलेगी ना, वो एक ही जैसी है ना, एक ही जैसी है ना। जी। तो ये सब कुछ हमने इस स्टोरी में कुछ सुना। आइए कुछ आयात को सुनते हैं। आयात को सुनते हुए भी आपने जो कहानी अभी पढ़ी उसके ऊपर भी जरा तवज्जो कीजिएगा, और फिर आप बताइएगा आपने इससे थोड़ा सा। मैं एक सेकंड मुझे लीजिए, चलें। आवाज नहीं आ रही थी। वो मैंने किया था ना, तो ये बाकी सारे म्यूट कर लें काइंडली पार्टिसिपेंट्स में। हाँ नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही थी। आपने वो इनेबल करना है इसके ऊपर। नहीं, आवाज नहीं आ रही ना, आपने इनेबल नहीं किया हुआ इसके ऊपर। जूम में आपने इनेबल करना है। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, मैंने आपकी बात सुन नहीं सकी थी। अब मुझे दोबारा कंफर्म कर दीजिए, एक मिनट में फिर दोबारा चलाती हूँ। أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. मोमिनो, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर देना, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। वो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तुम थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में हो जाऊं। जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। सूरह सूरतुल मुनाफिकून की आयत है।
आगे सुनते हैं 2 आयत और। يوم لا ينفع مال ولا بنون जिस दिन ना माल कुछ फायदा दे सकेगा और ना बेटे। كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. हर मुतनफ्फिस को मौत का मजा चखना है और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स आतिशे जहन्नुम से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल कर दिया गया, वो मुराद को पहुंच गया और दुनिया की जिंदगी वो धोखे का सामान है। आखिरी आयत। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और औरतें और खानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसके बंद हो जाने से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो तो ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेज दे और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। तो ये कुछ आयत थी। इस तरह की तो बहुत सी आयत हम कुरान में पढ़ते हैं। अब तो आप लोग कुरान के फहम में इम्प्रूव अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए तफक्कुर और तदब्बुर के मकामात हैं। जितना भी हम सोचें उतना ही अच्छा है। ये कहानी सुनाने का कुछ मकसद भी होगा। आपने इस सफ़र का आगाज़ किया है, QC 1 किया, कुछ लोगों ने 2 किया, अब ये सफ़र हमारा जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो इन लाइंस के ऊपर सोचें और इस तरह से महसूस करें कि हम इस दुनिया में किस मकसद के तहत आए हैं और क्या हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं अपनी आखिरत को बनाने के लिए। और ये जो माल औलाद और जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, ये भी रिस्क की एक फॉर्म है। तो हम इसके ऊपर अल्लाह का कितना शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक चल रहे हैं। कमी बेशी यकीनन है हमारे अमाल में, तो हमें कोशिश करनी है हर लम्हे खुद को इम्प्रूव करने की, कुरान से सही मानों में सबक हासिल करना है, अमली ज़िंदगी पे अप्लाई करना है, ताकि नज़र भी आए कि वाकई हम किसी को दावत भी दें तो पता चले कि हमने भी कुछ हासिल किया है। तभी हम मोटिवेशन भी दे सकेंगे आगे लोगों को। रिजल्ट की तरफ आते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट QC1 बैच 435। आप लोगों में से किसी को कोई एतराज तो नहीं होगा कि अगर हम रिजल्ट को ओपनली परसेंटेज आप लोगों की बताएं? अगर कोई चाहे कि ना बताई जाए, वैसे तो मैंने लेट ही पूछा है, इस वक्त ही पूछ रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो हम, क्या ख्याल है? हम लोग का पैटर्न ये कि हम लोग अनाउंस करते हैं रिजल्ट्स को बाय नेम ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? नहीं नहीं मैम, नहीं करें टीचर, आप। नहीं देखिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म कोई किया प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो उनका चाहते हैं रिजल्ट कि तो उनका प्रॉब्लम नहीं है।
ہاں اور جنہوں نے کم اچھا پرفارم کیا جی ہوگا کریں. اس کے لیے بھی کوئی قطعاً میرا خیال ہے کہ اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جی اس میں ایسا مقابلہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یقیناً وہ اپنے سینئر سے موٹیویشن لیں گے, ان سے ہیلپ بھی لیں گے, اور جنہوں نے اچھا پرفارم کیا وہ ان لوگوں کی مطلب اسی طرح سے ہیلپ کریں گے جیسے ان کو ہیلپ ملی. صحیح ہے نا, جیسے آپ کو ہم لوگ ہیلپ کرتے تھے, سسٹر اقصا باقی لوگ ہیلپ کرے ہوتے تھے. اب آپ کے ساتھ جو جونیئرز ہوں گے یا جو کورس ریپیٹ کریں گے سب کچھ, آپ بھی تو ان کی ہیلپ کریں گے نا. ٹھیک ہے, آپ نے مطلب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ نے جو بھی مس کیا ہم آپ کو وہ سکھاتے ہیں, آپ بالکل پریشان نہ ہو, آپ دوبارہ سے اس کو اٹیمپٹ کریں, اس کورس میں دوبارہ شامل ہو جائیں. تو سسٹر عظما اور سسٹر وقار النساء نے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن حاصل کیا ہے. ان کے 66 یا تقریباً 67 ہی ہیں اور 68% ان کے مارکس ہیں. تو یہ اچھے مارکس ہیں, صرف یہ ہے کہ شاید ان سے کچھ چیزوں میں مس ہو گئی ہوں کچھ چیزیں, یا پھر ہوم ورکس وغیرہ انہوں نے تھوڑی سی کم توجہ سے کی ہوں. تو آپ لوگ اوپن بک ہوم ورک کیا کریں اور انشاءاللہ کورس کو ریپیٹ کریں, آپ کے جو گریڈس ہیں وہ امپروو ہوں گے. اور اس کو کورس کو چاہے کتنی مرتبہ ریپیٹ کریں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ساتھ دوبارہ سے رجسٹر ہوتے ہیں, کسی اور کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں. میرٹ کا سرٹیفکیٹ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے حاصل کیا ہے. میمونہ فاطمہ 71. اچھا سوری فار انٹرپشن. اچھا اس میں جو سسٹر عظما ہے اس میں ایکچولی 2 عظما ہیں, ایک تو اور ان کا پورا نام ہے. یہ جو سسٹر ہیں انہوں نے ورک بک سبمٹ نہیں کی تھی, تو میرے خیال میں کچھ اسٹوڈینٹس شاید اس چیز کو ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ورک بک کی 15% جو ہے ویٹیج ہوتی ہے فائنل ریزلٹ کے اندر. تو سمجھ لیں اگر انہوں نے ورک بک جمع کروائی ہوتی تو ان کے مارکس جو ہے زیادہ ہونے تھے, رفلی 80% کے آس پاس ہونے تھے. یہی تو بات ہے ساری نا. تو اس طرح کی جو آپ لوگوں کی کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں فار سم ریزن, یا اس سے پرابلم ہو جاتی ہے, تو ضرور آپ لوگ اپنی ورک کو کمپلیٹ کر لیں, اور ابھی بھی کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو کمپلیٹ کریں, اور آپ کا نیکسٹ ٹائم آپ نیکسٹ سرٹیفکیٹ انشاءاللہ میرٹ میں آ جائیں گے, آپ ایکسلنس میں آ جائیں گے. اس کے بعد میں نے 2 سسٹرز کا بھی رزلٹ بتایا تھا. پھر بردر ہیں آصف محمود, ان کے 76.8 ہیں. صالحہ بی بی 77.1, جویریہ حماد 79.5, عابدہ نسرین 79.9, سائقہ طارق 82.2, نبیلہ یاسمین 85.6. سسٹر وہ ہیں ہمارے ساتھ طلحہ اینڈ آل دا اسٹوڈینٹس ان کے. جی سسٹر تھیں, میں نے نوٹ کیا تھا انیشلی تو تھیں, ابھی جی ہیں تو صحیح وہ. میں نے ان سے بات کی تھی, میں نے کہا تھا آپ ضرور آئیں اور اپنے ساتھ اسٹوڈنٹس کو بٹھائیں, تو انشاءاللہ ان کے اسٹوڈنٹس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, تو یقیناً اس میں سے بھی کچھ شاید ان کے ہیں. تو آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا, میرٹ کا سرٹیفکیٹ لیا, آپ سب کو بہت مبارک ہو. یہ علم آپ کو مبارک ہو, اللہ کرے کہ یہ علم ہم سب کے عمل میں بھی آئے اور ہم اس کو آگے بھی پھیلائیں اور مزید اس سفر کو جاری رکھیں. سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کیا ہوتے ہیں, جس میں 90% اینڈ ابو مارکس ہوتے ہیں. اخلاق احمد ماشاءاللہ 90.6, ہیرا وہاب 92.3, آمینہ شہزاد 93.3, بینش شکیل 94.2, حافظ ملازم 94.4, شائستہ خالد 94.6, دعا نثار 95.6, عامر اقبال بردر 96%, اور سسٹر عظما ارم ان کے 97.6 ہے. ابھی سسٹر عظما کا میسج تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ابھی جا رہی ہیں, ان کا رزلٹ ہم نے اناؤنس کیے ہیں, وہ دیکھ لیں گے. بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ, مبارک ہو جائے آپ سب کو. ابھی ہمارا ایکسیلنس کا سلسلہ جاری ہے. سسٹر شازیہ ناز نے دی ہے 97.7 مارکس, مریم ارشد 97.7, مقابلہ دیکھیں نا. اس کے بعد ہے نزہت عابد 97.9, شازیہ رفیع 98, رامین طارق 98, مصباح مرتضیٰ 98.8%. ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. اچھا اب مجھے بتائیں سب کے نام پورے ہو گئے, کچھ رہ گئے؟ کوئی بولے میرا نام نہیں ہے میم, میرا آپ نام کا نام نہیں کیا ہے. ہے؟ گڈ نیم مصباح اقبال. اچھا چلیں جی, سسٹر مصباح اقبال. اور کس کا نہیں ہے؟ ٹیچر ہمنا شوکت. ہمنا کا بھی نام نہیں ہے, ہمنا. اور کس کا نہیں ہے؟ اور کس کا نہیں ہے؟ بس اس کا مطلب لوگ آئے نہیں نا کچھ. تو میں تو آپ لوگوں کے لیے کتنی اچھی اناؤنسمنٹ کرنے والی ہوں, اور آپ لوگ آئے نہیں ہیں, یہ کیا بات ہے؟ پوزیشن ہولڈرز منیبہ حلزیب 99.4% کے ساتھ 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. حفصہ نواب 99.4. کیا آپ میں سے کوئی موجود ہے منیبہ یا حفصہ؟ یہ طلحہ کے ہیں شاید بچے, یہ نہیں.
सहरिश नवाज 99.5% सेकंड पोजीशन, सुमेरा इकबाल 99.5 उनकी भी सेकंड पोजीशन। ये हैं दोनों सिस्टर या नहीं? पोजीशंस लेने वाली भी रिजल्ट सुनने नहीं आए, ये क्या बात हुई? हमना शौकत नाम मिल गया आपको 99.9। सिस्टर मिसबा का नाम था, सिस्टर मिसबा का नाम नहीं आया कहीं पे भी? नहीं मैम, मेरा नाम नहीं आया। मिसबा जी मुर्तजा है, उसमें मिसबा इकबाल जी नहीं है। नहीं मिसबा इकबाल जो है सिस्टर, आपको कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके जो है ना कुछ होमवर्क्स मिसिंग थे, बल्कि आपके तो सारे मिसिंग थे और आपको रिमाइंडर भी दिया गया था। अब मसला ये है कि ये हमारा जो रिजल्ट कंपाइल होता है ना, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। सर और इसके मैंने अंदर आपको सेंड किया था वर्क बुक, और आपने वो चेक करके मुझे वापस भी भेजी है। नहीं फीडबैक भी होमवर्क्स दी की मैं बात कर रहा हूँ, होमवर्क्स। अच्छा, मैं चले आपसे मैं अलग से फिर मैसेज करके मैं आपको डिटेल सिस्टर शेयर कर मिसबा देता हूँ। इकबाल, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सिस्टर मिसबा, आपका मसला अभी हम चेक करेंगे। जाहिद भाई कह रहे हैं कि आपके होमवर्क्स मिसिंग हैं, तो उनको चेक करेंगे कि होमवर्क्स आपके किस तरह मिसिंग होंगे। अगर आप अभी भी होमवर्क्स अपने सबमिट करेंगी, कंप्लीट करेंगी, तो हम उसको देख लेंगे। हाँ नहीं, उसको हमें नॉर्मली तो हम नहीं करते इतनी लेट, लेकिन आपके लिए हम अकोमोडेट कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे सेशन के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, मैं आपको डिटेल जी दोबारा शेयर ठीक है। करता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी जाहिद एक्नॉलेजमेंट भाई आई आपसे नहीं ना। बात मैंने करके सिर्फ आपका केस है जिसमें ये नहीं हुआ, बाकी सारों का जो है ना उनको रिजल्ट शेयर किया गया था। और नहीं जाहिद उनकी भाई, एक्नॉलेजमेंट आई है जब आपने मुझे फीडबैक, पहले आपने मुझे कहा कि अपनी वर्क बुक भेजे, मैंने अच्छा कंप्लीट ठीक, करके भेजी, आपने वो चेक करके वापस भेजी, और देन भी मैंने आपको एक्नॉलेज किया कि जज़ाकल्लाह। नहीं वो आप मिक्स अप कर रही हैं। एक नहीं, वर्क बुक है, एक सिस्टर होमवर्क की होमवर्क्स बात हो है। रही है, वर्क बुक की बात नहीं हो रही। होमवर्क्स की मैं बात होमवर्क्स की कर रहा बात, हूँ। वर्क जो बुक तो गूगल फॉर्म आपकी के है ना, सबमिटेड गूगल है। फॉर्म, जी जी गूगल फॉर्म की बात वो हो रही है, शायद वो आपने जो मिक्सअप होमवर्क्स किया है आते ना। हैं। चले मैं आप सेशन के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। स्टिल सिस्टम इस बात बिल्कुल सर परेशान जी ना हो, ठीक और है। हम सर माजरत ये चाहते मैंने हैं भी कि आपको गूगल फॉर्म का ना लेट किया था, कुछ मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, और नहीं ये आपके तो हो ज्यादा गए मुझे हैं, जिन्होंने किए हैं उनके तो मैंने बताया ना, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसमें ये नहीं है कि मैं जी खुद से करूंगा तो होगा। अगर जिसने भी लेट सबमिट किए हैं तो वो उनके आ गए हैं इसके अंदर फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो वो ठीक बाज है। का ये होता है, समटाइम्स ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसका सिस्टर एक बता रही हैं डॉक्टर मिसबा इकबाल जो है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो नाम के अंदर। इसलिए मैं वो बार बार कहता होता हूँ कि मेक श्योर करें कि आप अपना नाम प्रॉपरली लिखें, उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स ने ऑटोमेटेड हमें बहुत सिस्टम है। परेशान अगर हम्म स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो हमने कोशिश तो हम करते हैं उसको करेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं पर रह गया हो। तो मैं इंशाल्लाह जो सिस्टर है उनको मैंने बताया वो मैं सेशन के बाद मैं आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो जी मच जाहिद बहुत भाई। बस शुक्रिया। इनको जरा देख लीजिएगा, और ऐसा कभी बार हो जाता है सिस्टर, आपने इस पे थोड़ा सा वो करना है, डिसहार्ट नहीं होना आपने, और थोड़ा कोऑपरेट करेंगे आप और हम सब एक दूसरे के साथ, इंशाल्लाह चेक कर लेंगे आपको रिजल्ट, डोंट वरी। असल चीज आपकी कोशिश थी, आपने माशाल्लाह कोशिश की, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, बस उसको कंपाइल अभी कर। QC2 बैच 116 का रिजल्ट देख लेते हैं कि उनका कैसा रहा। मैं समझती हूँ ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट बहुत लोगों ने लिया। नसरीन कामरान 71%, कुरतुलैन 72%, गानिया लियाकत 75%, रेजान लियाकत 78.5%, मरियम बीबी 79% और हुमैसा बीबी 81.5। ये सारी तकरीबन मेरा ख्याल है जाहिद ये सब वो सिस्टर उम्मे तलहा की स्टूडेंट्स है ना। जी माशाल्लाह, तो उनकी स्टूडेंट्स ने काफ़ी उनकी प्रोमिनेंट पोजीशन है। बहुत अच्छा, मतलब ये वो थोड़ा सा बच्चियां बाकियों हैं को बता भी दें, मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जो कि वो कंफ्यूजन ना हो जी, पता नहीं ये दो कोर्सेज नहीं है, जी वो आप थोड़ा सा बता दें सिस्टर जी जी। उम्मे तला के बारे हमारे में। साथ एक टीचर है ना सिस्टर, उनका नाम सुमैया है, वैसे उम्मे तलहा शामिल के नाम से वो हमारे साथ यानी जैसे जाहिद भाई लोग हैं, टीचर्स हैं, अक्सर अपडेट टीचर हैं, तो इस तरह वो भी टीचर हैं। तो वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को ना ऑन साइट वहाँ पे उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में या जहाँ पे भी वो हैं, वो उनको ना ऑन साइट भी पढ़ाती हैं। और वो बच्चे, उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल्स, फोन नंबर, फोन्स वगैरह नहीं, सहूलत इतनी नहीं होती ना, छोटी बच्चियां भी हैं और गाँव की बच्चियां भी हैं, तो उनको वो खुद से बैठ के पढ़ाती हैं, और कभी कभार वो हमारे लाइव सेशन में भी आ जाते हैं ना। तो बल्कि ये स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, ये हैंड रिटन सारा काम करते हैं, और कुछ इनमें से ऐसे हैं जो हमारे गूगल फॉर्म्स भी कर लेते हैं। तो सिस्टर उम्मे तलहा अपनी पूरी सुपरविजन में उनको कोर्स कंप्लीट कराती हैं। QC1 कराया, अब उनको QC2 कराया, 3 कराया, तो वो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिग सपोर्ट है और बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि उन्होंने हर सेशन में इस तरह से बच्चियों को इकट्ठा करती हैं और उनको बहुत ही अच्छा ट्रेन कर रही हैं। बाकायदा उन बच्चियों की फिर वो रिजल्ट पे उनकी सेरेमनी वहाँ पे करती हैं, कुछ पार्टी वगैरह होती है, उनको
मोटिवेशन दी जाती है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो बहुत अच्छा उनका सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट हमारा चल रहा है। आमिना शहजादी 82.5%, शाजिया बीबी 83.5, आमना रहमान 85%, इरम वक़ार 86.2, बहुत एक्टिव थी ये सिस्टर भी, फातिमा अतीक 87.1, मुस्फिरा हनीफ 89%, जिल्ले हुमा 89.1 और नबीला यास्मीन 89.8%। आप सब ने मेरिट का सर्टिफिकेट लिया है, माशाल्लाह, मुबारक हो आप सबको। आ जाते हैं एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट की तरफ। अंजुम नास 92.3, अरूज अनवर 92.5, फोजिया शाहिद 92.9, शाजिया कोकब 93.3। सिस्टर फोजिया वही है ना जो हमारे घर के पास रहती है? ये वही है ना सिस्टर फोजिया? जी वही है। अच्छा माशाल्लाह। मुसरत नदीम 94.2। उम्मे तलहा ने हैंड रेज किया है, तो थोड़ा सा 1 मिनट मुझे ये कंप्लीट करने देना, मैं आपसे बात करती हूँ। अभी एक्सीलेंस हमारा चल रहा है। शीरीन हक 94.3, नूर फातिमा 94.5, सूबिया इमरान 95.1, अरीबा कमल 96.0। चलिए जी, किसका नाम रह गया पहले ये बताएं, रह गया किसी का नाम? कोई बताए कि जी मेरा नाम क्यों नहीं लिया? सब खामोश हो गए। चलिए, आपको स्टिकर मिल गया, बहुत उम्दा का। पोजीशंस बताऊं या आपको खुद ही पता है? कौन समझ रहा है कि वो फर्स्ट आया है? वैसे कोई बताए मुझे, या सेकंड आया है? चलो, कौन कह रहा है? शीरीन। किसका ख्याल है? शीरीन कह रही है? नहीं, शीरीन का तो रिजल्ट यहाँ पे आ गया, ये आ गया। फर्स्ट कौन आया होगा आपके ख्याल में? अरीबा कनवा। नहीं, अरीबा का रिजल्ट यहाँ पे आ गया। पोजीशंस तो भी मैंने बतानी है इनको, तो मैंने आपको बतानी है 1 2 3 1 2 3 बतानी है। फौजिया होंगी 3 नहीं, फौजिया का रिजल्ट पीछे आ गया। देखिए, जिनका रिजल्ट पीछे आ गया ना, वो पोजीशंस तो अब उन लोगों की है ना जो नहीं आए। चले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीजा महनाज 96.2, माशाल्लाह। जी मेरे ख्याल में वो सिस्टर बताने लगी थी। अच्छा, मैं बात करती हूँ सिस्टर से। इजाज अहमद, ब्रदर इजाज अहमद 96.5। शुक्र है कि ब्रदर्स में पोजीशंस पे आ गए माशाल्लाह। ये बड़े खामोश हमारे ब्रदर थे और हर क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह ये रेगुलर होते थे, और मैं ख्याल तकरीबन सबसे पहले मैं इनको देखती थी, इजाज भाई को। हालांकि इन्होंने तो क्लास में बात नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता था ये बहुत कमिटेड है, रेगुलर हैं और माशाल्लाह। ठीक है। और ज़ैनब अकबर 97% मार्क्स के साथ फर्स्ट पोजीशन है। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आप सबको। पोजीशन लेने की एक खुशी होती है, डेफिनेटली होनी चाहिए। और लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबने हमारी तरफ से सबने ही फर्स्ट पोजीशन ली है, सबके ही हमारी तरफ से 100% है। हम सबसे इक्वली खुश हैं, आप सबसे। ओके, जज़ाक जितना भी आप लोगों ने कोशिश की, आप लोगों ने मेहनत की और अपना पूरा इनपुट आपने दिया, ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहे, सब कुछ है, और यही आपकी लर्निंग थी सारी। माय नेम मिसिंग, एजाज भाई ने कहा, तो एजाज भाई आपका नाम मिल गया? अनीजा ने भी कहा था। तो अब आप लोगों को जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारा नाम नहीं आया, तो उनके नाम आ गए। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई शिकायत नहीं है ना QC2 में? ठीक है जी। तो अब आ गया हमारा फीडबैक का टाइम। अब वो सबसे पहले सिस्टर उम्मे तलहा ने हैंड रेज किया था, अगर वो बात करना चाहें तो। मोस्ट है सिस्टर उम्मे तलहा, उनका इंटरनेट बहुत ज्यादा मुझे पता है डिस्टर्ब करता है, तो जी अभी हैंड रेज। जी वालेकुम सलाम जी सिस्टर। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही बिल्कुल। अच्छा, दरअसल हम तो बिल्कुल टाइम से, बल्कि हम लोग पहले ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज बहुत हमें तंग किया है हमारे इंटरनेट ने, और अभी आधा सुना है आधा नहीं सुना। बहरहाल बच्चियां QC 1 2 की और सभी मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पे, और उन्होंने अपना रिजल्ट भी सुन, खुश हैं बहुत ज्यादा। और अल्लाह ताला आपको नियमत अता फरमाए। आपकी मेहनत है सब, और आपका ताउन है, और फिर बच्चों का माशाल्लाह उनका भी करती हैं। आपका अपना इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश है आपकी, डेडिकेशन है, और मैं समझती हूँ बहुत खिदमत है आपकी हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आपने तो माशाल्लाह फुल जो है ना वो बाजी लगाई है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिम्मत वही बात है। दे। ये तो मैं पहले से यानी कि पढ़ाने का ये सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन प्रॉपर एक तरीके से जैसे कि बच्चियों को मैं अब लेके चल रही हूँ ना,
تو اس میں بہت اچھا بھی لگتا ہے، بچیاں بھی اتنے خوشی سے شوق سے آتی ہیں پڑھنے کے لیے، یعنی کہ میرے پاس کی بچیاں رمضان میں بھی ریگولر آتی رہی ہیں نا اپنے ان کا، جب تک ان کا کوئز نہیں ہو گیا تب تک یہ ریگولر آتی رہی ہیں میرے پاس، اور ویسے بھی یہ ریگولر ہی آتی ہیں. تو ماشاء اللہ بس آپ کی دعائیں چاہیے اور بھی، اور محنت تو یہ کر رہی ہیں، اور سب سے بہت محنت کر رہی ہیں، بہت اچھی بچیاں ہیں، ینگ بھی ہیں، ان میں سے کافی کچھ بچیاں ایسی ہیں جو گریڈ 4 5 میں ہیں، کوئی 6 7 میں ہیں، ہر ایج کی بچیاں ہیں، اور ابھی سے وہ اتنا کچھ سیکھ گئی ہیں. بلکہ میں اسٹوڈنٹس کو بتا رہی تھی کہ جو آپ سے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو تو ایڈیشنل بینیفٹ ہو رہا ہے کہ وہ پوری ریٹن پریکٹس بھی کر رہے ہیں، ان کے رجسٹرز مینٹین ہو رہے ہیں، کاپیز بن رہی ہیں، ان کے ڈیلی بیسس پہ کام ہوتے ہیں، چیک ہوتے ہیں. اور یہ سسٹر جو ہے نا، یہ ہماری ٹیچر طلحہ، یہ اتنا اچھا رزلٹ کمپائل کر کے ہمیں دیتی ہیں، باقاعدہ پورا ایک وہ ٹیبل بنا کے، ایک ہوتا ہے نا، جیسے سمجھیں کہ بہت باریک بینی سے نا کام کرتی ہیں ہر چیز. بہت اچھا لگتا ہے ان کی جو ہمیں کنٹریبیوشن ان کی طرف سے مل رہی ہے نا، ہمارے لیے وہ بہت ہی ویلیوبل ہے، بہت قیمتی ہے. جزاک اللہ سسٹر سمیہ. طلحہ شامل ان کا انشاءاللہ میں نے ابھی سنڈے کو ہم لوگوں کا ایک پروگرام ہے، عید ملن ہی پروگرام ہے ہمارا، تو اس میں جو ان کے QC1 کے انشاءاللہ سرٹیفکیٹ ہوں گے نا، تو وہ پھر میں نے کہا تھا کہ چھوٹا سا ایک پروگرام یعنی کہ ارینج کر کے، تو اس میں انشاءاللہ ان کو سرٹیفکیٹ بھی پھر ہم دیں گے ان کے، تو وہ ان کا ایک فنکشن بھی ہو جائے گا، فنکشن بھی ہو جائے گا. ماشاءاللہ دیکھیں اپنے طور سے یہ لوگ ان کو اچھا لگے گا، تو بہت ہی یہ اچھی ایک سمجھتی ہوں کہ اپرچونٹی ہے ان بچیوں کو، اور میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان بچیوں سے میں جا کے ملوں. ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا چانس ہو انشاءاللہ کہ ان کے پاس جانا چاہیے. کہنے والی تھی انشاءاللہ ہم پھر آپ کو بھی کبھی انوائٹ کریں گے. ہاں انشاءاللہ پلان بنانا چاہیے، کیونکہ سسٹر اکثر آگے بھی اسی طرف رہتی ہیں. آئی وش کبھی میرا کوئی پلان بن جائے میں آپ لوگ سے ملوں انشاءاللہ. بڑی آپ لوگ خوبصورت جگہ پہ رہتے ہیں، سینک جگہ پہ. بالکل بالکل انشاءاللہ سمر میں پلان بنانا چاہیے. چلے پھر آپ ہمیں بلائیں ذرا نا، 2-3 دفعہ بلائیں تاکہ ہم کچھ پلان بنا لیں. ٹھیک ہے جی ہاں، موسم اچھا ہو نا اس طرح کا، جیسے پیارا سا موسم ہو اور آپ انجوائے کر سکیں پھر انشاءاللہ. چلے جی آگے چلتے ہیں. اور بھی آپ میں سے کوئی فیڈ بیک دینے چاہیے؟ سسٹر عظمیٰ ارم تھوڑی دیر کے لیے کہیں تھی تو انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے کیا مس کیا. سسٹر عظمیٰ آپ کا رزلٹ ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کیونکہ لسٹ میں آ گیا تھا، اور رزلٹ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں آپ یا کوئی بھی اور، تو آپ لوگوں کا فیڈ بیک کا ٹائم ہے، تو بھی آپ کہنا چاہیں. کوئی کمنٹس، کوئی مشورہ، کوئی تنقید؟ جی سسٹر. اچھا یہ کون بات کریں گے؟ ارم کا یہ بات کرنا چاہ رہی ہیں QC2 کی منیبا. السلام علیکم. چلیں منیبا بات کریں. جی جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. جی آپ جان قرآن پاک آسان طریقے سے پہنچایا، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور ہماری اپی جان نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے نا، ہم نے یہاں پہ آ کے مدرسہ میں جس طرح سے پڑھا ہے ہمیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، اور بہت زیادہ ہماری اپی جان نے ہم سے محنت کی ہے. اور ماشاء بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہماری اپی جان کو بھی آمین. واقعی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے اور ہم نے بھی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. زاہد بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ فرمائیے. جی السلام علیکم. اچھا اصل میں معاملہ اس طرح کہ یہ جو ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں قرآن سکھانے کا اور سیکھنے کا، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ شوق اور لگن کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ منسلک رہیں. اب فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہ میرے خیال میں ہمارا چوتھا یا پانچواں سیشن ہے کہ جو رزلٹ آیا ہے اس میں ایک اسٹوڈنٹ مسنگ ہے، جو سسٹرز جن سے بات ہو رہی تھی. تبھی میں نے ان سے وہ آف لائن کوآرڈینیٹ کیا. ان کے جو ہوم ورکس ہیں وہ سم ہاؤ انہوں نے کنفیوز کر دیا ہوم ورکس کو ورک بک کے ساتھ. اینی ہاؤ ود آؤٹ ہوم ورکس جو ان کے مارکس ہیں وہ 77% ہیں، اور وہ سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے ان کا. میں کیونکہ ان کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے تو میں اکاموڈیٹ کر لوں گا جو ان کے ہوم ورکس ہیں. یعنی کہ آپ نام لکھ کے اناؤنس کر دیں یہاں پر. جو سسٹر ہے نا ڈاکٹر مصباح اقبال، وہ سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے ان کا QC1 میں with 77% مارکس، اور یہ ود آؤٹ ہوم ورکس ہے. اگر وہ اس میں کرتی تو ماشاءاللہ دیکھیں ان کے 90% ابو ہونے تھے. تو اینی ہاؤ کیونکہ یہ کنفیوژن ہوئی ہے تو میں ان کو اسٹل اکاموڈیٹ کروں گا. I'll share ہوم ورک لنکس with her.
इंशाल्लाह जी सिस्टर आप बहुत शुक्रिया, confirm बहुत हो गया शुक्रिया है। जाहिद भाई, क्योंकि बहुत मैं शुक्रिया। नहीं चाहता कि कोई एक स्टूडेंट भी जो है ना वो इसलिए कि कुरान कोर्स छोड़ जाए जी कि उसके रिजल्ट नहीं ठीक नहीं नहीं आया। बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं कि छोड़ेंगे, आप नहीं इसके नहीं, साथ छोड़ना लिंक क्यों रहें। है जाहिद भाई, छोड़ना हाँ क्यों नहीं है? और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर आई एम मिसबा तो माशाल्लाह बहुत मोटिवेटेड और एक्टिव मैं रही हैं, कंटिन्यू हमारी क्लासेस करूंगी। में भी रेगुलर आती रही हैं, सब कुछ है इंशाल्लाह। जी, थोड़ा सा अगर क्लासेस लेनी भी है मैडम, और आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह टीचर जरूर इंशाल्लाह लेनी है। क्यों नहीं और बिल्कुल। बिल्कुल इस वजह से तो नहीं छोड़ना कि रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, ये तो कोई कभी कभार रीजन ऐसा हो नहीं है। जाता है, मैंने पता है क्या इसमें थोड़ी सी नहीं मेरी अपनी बास मिस्टेक भी है। स्टूडेंट सेंसिटिव होते हैं इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे जरा जी, इसमें थोड़ी सी मेरी अपनी मिस्टेक भी है। एक्चुअली मैंने कुछ सेशन बाद में ज्वाइन किया था एक दो, तो वो मुझे थोड़ा सा हाँ मुझे कंफ्यूजन याद आ रही, गया, मतलब एग्जैक्टली मुझे जी याद आ गया, आपने थोड़ा सा बाद में जी ज्वाइन जी किया था, फिर जी जी, कुछ तो हमने इस उसका वजह कुछ से मैं नहीं कर सकी। अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने किया उसका तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। और होमवर्क भी मैं इंशाल्लाह, जाहिद भाई मेरे साथ लिंक शेयर करेंगे तो मैं इंशाल्लाह विद इन डे आपको करके सेंड कर दूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह। आपको एक बात बताती चलूं कि हमारे जो जाहिद भाई है ना, जी ये भी जी बड़े लायक फाइक बच्चे हैं ना, तो इनके साथ भी एक दफा मसला हो गया था। आपने तो होमवर्क सबमिट ही नहीं किया ना, इन्होंने किए हुए थे, हाँ हाँ तो इनके जो है वो शामिल नहीं हुए थे, तो इनका हाँ रिजल्ट भी डाउन हो गया था। इनकी पोजीशन फर्स्ट बनती थी और इनको पोजीशन पता नहीं दी नहीं गई थी या कोई और दे दी गई थी। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हर एक के साथ कभी कभार कुछ ना कुछ हो ही जी जाता है जी ना, यानी चांस होता जी है, जी होता, हम लोग कोशिश सारे करते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना हो। तो जी जी इनके साथ भी ऐसा कभी कभार मतलब हुआ ना, तो ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है कि इंटेंशनल नहीं होता, लेकिन कुछ हो जाती है बात ऐसी चीज, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे बात जी जी, सिस्टर। इंशाल्लाह QC2 में इंशाल्लाह बहुत रेगुलर रहेंगे और बड़े बड़े मोटिवेटेड रहेंगे। और इंशाल्लाह जो अभी ये हुए है मिसअंडरस्टैंडिंग ये नहीं होगी, और इंशाल्लाह नहीं होगी, QC2 क्योंकि भी आपके QC2 में साथ सब लोग ज्वाइन बड़े हो करेंगे। जाएंगे ना, सब लोग समझदार हो जाते हैं, उनको जी सारा पता चल जाता है ना कि जी जी हमने क्या क्या बिल्कुल करना है। QC1 में जी थोड़ा जी सा नया होता है ना सिस्टम सबके लिए, तो उसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है। जी तो जी, बहुत इजाज का भी शुक्रिया। मैसेज आया हुआ है कि उन्होंने अस्सलाम कहा है कि अगर मैं इस्लामाबाद में होता तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कौन सी सिस्टर बात करेंगी? मैं मिसबा बात कर रही हूँ। मैंने जी, एक चीज कही, ये बात हो रही है ना कंफ्यूजन वाली, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अब सम टाइम जैसे कि मैं अपनी भी एग्जांपल ले लूं, बच्चे होते हैं और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली निकला होता है। ये जो होमवर्क वगैरह आप शेयर करते हैं, इवन बुक्स वगैरह भी, ये कोई ऐसी जगह पे मसलन स्पेसिफिक कर दे। अब जैसे हमें होमवर्क भेजे हैं, सारे भेजे हैं, मैंने किए भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जब एंड में जाहद भाई ने एक दफा कंफर्मेशन का मुझे भेजा कि ये आपके सही हैं, अब मैंने देख के बता सकती थी, मतलब मैं चेकआउट नहीं कर सकती थी आया मेरे सही हैं या नहीं। देख के मुझे लग रहा था हाँ ये मेरे सही हैं। मसलन जो बुक्स होती हैं हमारी किसी ऐसी जगह पे पड़ी हो, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मैसेज डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि कई दफा बहुत सारे ग्रुप्स हैं होते हैं, इतने मैसेज आ जाते हैं, कुछ बच्चों के भी हैं, तो वो नहीं रहता, जहन में भी नहीं रहता, और मेरे तो डिलीट ही हो जाते हैं अक्सर पेशतरी। कि कोई ऐसी जगह हो, ये फिजिबल होगा मेरे जैसे जो भी जितने भी मैरिड लोग हैं और उनके पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं, कि वहां से बंदा अगर गुम अपनी डिलीट हो जाती है कोई चीज, तो वहां से फौरन एक्सेस ले। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। अच्छा जाहिद भाई, हम बात करेंगे इस बारे में एक गूगल क्लासरूम बनाने की, ठीक है जाहिद भाई? वैसे तो एडमिन ग्रुप में हम करते हैं ना सब कुछ, तो एक क्लासरूम भी बना लेंगे। जाहिद भाई और फवाद भाई की हेल्प से हम एक गूगल क्लासरूम बना लेंगे, उसमें हम मटेरियल शेयर करके करेंगे, और वैसे एडमिन ग्रुप में मौजूद होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सिस्टर। सिस्टर बकानी जी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी सिस्टर। जज़ाकल्लाह मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक एजेड यानी कि 55 प्लस हूँ, तो कोई एज जाहिर सी है बात है। 55 प्लस? क्या आपने नहीं एजेड अपने मतलब आप मैं को थोड़ी बताया? सी शुगर पेशेंट भी हूँ, मगर मुझे शौक था, अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी में ये मौका दे दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेशक मेरा रिजल्ट इतना यानी कि मुझे पोजीशन का कोई नहीं, मगर जो समझ आई ना जो चीज मुझे कि कुरान को कैसे समझ के पढ़ना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जज़ाए खैर अता करे। आपका पूरा है। हाँ, जी आपका जी रिजल्ट पूरा है, आपको करना था। जी जी। जी बिल्कुल। तो मैं आइंदा भी इंशाल्लाह आपके साथ QC2 में सॉरी मैं जरूर इंशाल्लाह आगे चलूंगी, जब तक अल्लाह जिंदगी ने मौका दिया, अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर जरूर मैं आगे भी चलूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, जो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह। ना, क्योंकि मैं तफसीर से भी पढ़ रही हूँ, मुझे फिर बहुत इसमें हेल्प मिलती है कुरान के अल्फाज को समझने में ना। जी तो बिल्कुल मुझे मुझे दिली तौर पे ना आपके लिए बहुत दुआएं निकलती भी हैं, और आइंदा भी जितने ये पूरा स्टाफ है
اللہ ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस ये जो ना फीडबैक था ना मेरा, तो मैंने दिल से आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच बस सिस्टर, आप हमारे सोशल मीडिया पे भी काफी हमें सपोर्ट कर रही होती है ना, काफी आप जी जी आपकी जी तरफ जी से मैं बड़े शौक से वो देखती हूँ, आपकी जितना भी आता है ना, तो मैं जरूर बहुत वो अच्छा लगता देखती है हूँ। मुझे। बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो हमारा रेगुलरली सोशल मीडिया हमारा विजिट करती हैं, तो जरूर जी किया जी करें, उसको शेयर भी किया करें आगे और लोगों को। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सोशल मीडिया वैसे यूज नहीं करती। मेरा जो इस्लामी टॉपिक होते हैं ना, मैंने वही पेज लाइक किए हुए हैं, जैसे उसमें आप भी आ जाते हैं। और भी जी काफी सारे मतलब हैं जो, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है और मुझे खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी में ये मौका दिया है। और सब जी बोलते हैं ना कि जो ये मोबाइल है अच्छा नहीं है, तो मैं कहती हूँ ये इतनी अच्छी चीज है मेरे लिए, खास करके जैसे हम लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, पहले टाइम की इतने ज्यादा हमारी तालीम भी नहीं है, तो यहाँ से हमें बहुत, मुझे खास करके तो बहुत अच्छा लगा है। देखो घर बैठे हुए मुझे कुरान समझ के पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं आपके तवस्सुत से। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। सिस्टर इरम वकार ने कुछ कहना था, जी कहिएगा। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने हम पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। ऐसा है कि मैं एक जॉइंट फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, तो पूरे इसमें कोर्स में मुझे 2-3 बार मैंने सोचा कि अब मैं ना QC3 कर नहीं पाऊंगी मतलब, तो लेकिन फिर एक मेरे साथ ईद पे ऐसा इंसिडेंट हुआ। ईद की नमाज पढ़ने गए ना, तो वो वहां पे कारी साहब जो तिलावत कर रहे थे, वो मुझे मतलब उन्होंने की, तो वो मुझे कुछ 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 बल्कि काफी ज्यादा ना समझ आ रही थी कि मतलब, तो वो मुझे इतना रोना आ गया कि मतलब ये ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। तो उसी दिन मैंने सोचा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं जैसे भी करके कंटिन्यू जरूर करूंगी। तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जज़ाकल्लाह सिस्टर। यकीनन हम सब ने बहुत फर्क महसूस किया होगा अपनी तरावी सुनने में, अपनी ईद की नमाज और जो भी हम नमाज पढ़ते हैं जमात में, यानी जब हमारे कान में तिलावत आती है या कहीं पे भी तिलावत लगी हुई हम सुनते हैं घर में, टीवी पे, फोन पर, तो जब हमें समझ आ रहा होता है तो हमें ये खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कोशिश करें वो सही डायरेक्शन में जा रही है, यानी उसका रिजल्ट ओरिएंटेड आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज्यादा अजर दे और हमें भी अमल की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर उज़मा इरम, अपना रिजल्ट आपने देख लिया? सिस्टर उज़मा ने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली कि मुझे मेरा जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और सबको बहुत कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है मेरे से ज्यादा किसी को भी रिजल्ट का इंतजार नहीं था, मैं इतनी एक्साइटेड चल रही थी, और जब आपने वो थोड़ा डिले किया तो मुझे बहुत हो रहा था कि यार ये कैसे दिन गुजरेंगे, मतलब ऐसा था कुछ। So I'm so happy सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, and we learned a lot. जज़ाकल्लाह to everyone। आपको सबसे पहले, फिर सिस्टर अक्सा जो हमेशा जो है वो तस्हीह करती हैं और बहुत अच्छे से और इतना टाइमली के बस माशाल्लाह माशाल्लाह। और जाहिद भाई स्पेशली जाहिद भाई ने बहुत सपोर्ट किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेहनत आप लोगों की, अल्लाह में आपको बहुत जज़ाए खैर दे। सब बहुत खुश हैं। ऑफ कोर्स ये जो अभी सिस्टर बता रही थी अपना एक्सपीरियंस, जी बिल्कुल, अल्लाह करे कि हम लोगों को, बेशक अल्लाह की तरफ से ही तौफीक है कि हम समझे कुरान को और उसको अमली जिंदगी में अभी इम्प्लीमेंट करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वो मैट्रिक वाले और स्कूल वाले डेज याद आ गए, जब छोटे छोटे टेस्ट में वो टीचर्स हमें देती थी और हमें होता था कि हम लोग मतलब क्या पोजीशन है, कितने नंबर है, कौन टॉपर है, लाइक दिस। तो जब हम अल-फलाह में पढ़ते थे ना ऑन साइट, तो हम लोग हमारे साथ जितनी भी एजेड लोग भी होते थे, ज्यादा एजेड भी, तो वो ना नोटिस बोर्ड पे हमारा यूं टेंटेटिव रिजल्ट लगा देते थे। जिस तरह जाहिद भाई आपको पर्सनली भेजते थे, नोटिस बोर्ड पे लगा देते, कहते थे कि अब आप इसको चेक करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। तो सब लोग भागे भागे जा रहे हैं, नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, वो बिल्कुल सबको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ याद आ रही होती थी, तो सब कहते थे हम यहाँ पे आके यंग हो गए हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बिल्कुल ना, वो स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, वो छोटी छोटी खुशी वैसे ही फील होती है हमेशा, आप किसी भी एज में हो तो। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जाहिद भाई खिदमत के लिए आपके जो ना हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जाहिद भाई आपको सर्टिफिकेट दिलाएंगे। एक ड्यू प्रोसेस है, एक प्रोसेस चलेगा। अल-फलाह से हम सर्टिफिकेट आपके लेते हैं, आपकी पहले लिस्ट भेजते हैं, वहां से बन के आते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जाहिद भाई इंशाल्लाह आप उनसे राब्ता रखते हैं, तो आप लोगों को ना, अच्छा क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन ज्वाइन किया था, तो वो फिर आई थिंक मुझे तो फिर सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। जी सॉफ्ट कॉपी, सबको सॉफ्ट कॉपी
नहीं, सबको सॉफ्ट कॉपी मिलती है, और वो अब प्रिंटिंग का सिलसिला उन्होंने क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेंड किया है उन्होंने अल्फला ने माशाल्लाह, तो उसके लिए मैनेज करना उनके पास जो स्टाफ है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, तो अब वो सॉफ्ट कॉपी शेयर करते हैं, और फिर अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप प्रिंट जी जी आप बात करें। आप खुद ही प्रिंट करवा सकते हैं सर्टिफिकेट, हाँ उसमें प्रिंटिंग ही होती है, वो भी प्रिंट करवाते हैं आप, अगर किसी ने प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट करवा लें, अदरवाइज प्रॉपरली आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पूरा साइन सर्टिफिकेट होता है प्रॉपर ना, बड़ा अच्छा, हाँ बड़ा खूबसूरत सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, डोंट वरी। हाँ जी, अच्छा मैंने जब ज्वाइन किया था ना तो तभी ये जब आपने शुरू में पहले लेक्चर में कहा था तो मैंने बोला एटलीस्ट 90% तो आने चाहिए, अगर ज्वाइन किया है तो फिर एक्सीलेंस तो मिलना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई एम सो हैप्पी आई हैव अचीव्ड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब क्रेडिट आपको, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाई क्योंकि मुझे सबके नाम पता भी नहीं है जिन्होंने भी सपोर्ट किया इस पूरे प्रोसेस में, क्रेडिट सबको है, मैं समझती हूँ क्रेडिट सबको है, सपोर्ट टीम को है, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर, जो पार्टिसिपेंट्स हैं जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स जी जी जी, क्योंकि वो शेयर करते थे अपना तो एक मोटिवेशन मिलता था, अच्छा इन्होंने होमवर्क कर लिया, हम पीछे रह गए, हम लोगों को भी करना चाहिए ऐसे। और कोई आपने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा कि कोई आपसे आगे बढ़ के आपको पीछे छोड़ना चाह रहा है, सब लोग एक दूसरे को साथ लेके जी, बहुत कोऑर्डिनेट, बहुत ही मतलब लोग एक दूसरे के साथ खुद ही, शायद हमें कुरान ही अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें सिखाते हैं ना कि हमने सबको साथ रखने हैं, ये नहीं है कि बस मैं दौड़ के आगे बढ़ जाऊं, जीत जाऊं और मेरे पीछे लोग पीछे रह जाएं, ऐसा कभी कोई सोचेगा नहीं सिस्टम है ना, तो ये बहुत सिस्टम की मेरे ख्याल से। बिल्कुल, थैंक यू अगेन सबको, जज़ाकल्लाह। सिस्टर एक हैं नबीला यास्मीन, वो बात करना चाहिए जी सिस्टर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टीचर। बहुत शुक्रिया आपका और खास तौर पर भाई का, वो उन्होंने मुझे कि आपका नाम, दरअसल टीचर बात के मुझे इतना नहीं मोबाइल का यूज आता और इतना नहीं मुझे पता ना, तो वो बच्चे ही कर देते हैं, जब मैं ये कर देती हूँ होमवर्क तो वो मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। क्यों मुझे बिल्कुल ही इस चीज के बारे में नहीं पता था, मैं काफी कोशिश करती हूँ कि ये मुझे आ जाए और मुझे आया भी है, और अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज्यादा अजर दे। और ये आपने हमें घर बैठे इतना इल्म दे दिया ना, जो जिसकी ना हम सिर्फ ख्वाहिश करते थे और पता नहीं था कि ये कैसे कर पाएंगे, घर की जिम्मेदारियां और घर के बाहर ना ही जाना और कैसे, लेकिन आपने ये मुमकिन बनाया और हमारे लिए आपने आसानियां पैदा की। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करी। शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम से लेकर अरशद इकबाल मलिक साहब से लेकर फिर हम उनके स्टूडेंट्स बने, सब कुछ है, ये सारा क्रेडिट सबको जाता है, हमारे बड़ों को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वन है ना, इसमें जब ये देखे मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बस कुरान पढ़ते थे, उसके बावजूद आपने बहुत अच्छा रिजल्ट मैं समझती हूँ अचीव किया, उसके बावजूद आपने, और आपकी ये लगन है जो काउंट होगी, अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को लेकर भूल गए हैं, बच्चे जवान हो गए, शादियां हो गई, तो वो उसके लिए फिर एंजॉय करें ना, इस टाइम को एंजॉय करें खूब, इस टाइम को, और बच्चों से हेल्प ले लिया करें और टेंशन भी होती। जी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये क्रिश्चियन में जो बच्चियां या जो भी हजरात आते हैं ना, उनको चाहिए छोड़ा ही ना। जब मैंने पहली दफा ये क्रिश्चियन किया था ना, तो मुझे नहीं आ रहा था, मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं लग रही और मैं कैसे कर पाऊंगी इतने सालों बाद। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसीलिए लोग छोड़ जाते हैं, छोड़े नहीं, इसको करते रहे, फिर अल्लाह ताला खुद मदद करते हैं और अब समझ भी लगती है और काम भी इजीली हो जाता है। और इंशाल्लाह आगे मोबाइल का भी काफी मुझे आ गया करना, गूगल फॉर्म भी, और इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूंगी कि गलती ना करूं। देखिए हम आप लोगों को साथ साथ ना हाई टेक भी बना रहे हैं ना, मॉडर्न भी बना रहे हैं, साथ साथ मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल भी सिखा रहे हैं ना। चलिए जी, सिस्टर शीरीन भी कुछ कहेंगी जी। सिस्टर जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी आप सारी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। हम सॉरी सिस्टर शीरीन समहाउ म्यूट हो गई हैं, दोबारा से जरा अपना माइक ओपन करना पड़ेगा आपको सिस्टर शीरीन, आई एम सो सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम, पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं। मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की है, अमल लर्न करना चाह रही हूँ। अल्लाह ताला आप लोग को अजर देगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही एक्टिव सिस्टर थी हमारी, बहुत ही कमिटेड है माशाल्लाह।
और थैंक बहुत यू। अच्छा रिजल्ट हासिल किया आपने, जज़ाकल्लाह सिस्टर। मिसबा Thank- मुर्तज़ा भी कुछ कहेंगी सिस्टर? जी सिस्टर। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ताहत भाई, मैम आप और मैडम अक्सा और बाकी जितने भी लोग हैं सब। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों ने हमारी मदद की, और इवन इतनी जल्दी मदद की कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि अब नॉर्मली कोई भी घर में भी एक दूसरे को कोई काम कहे ना तो उस इट टेक टाइम कि वो काम होने में, बट पलक झपकने में अब ऐसे लगता था कि जैसे हमारे लिए बस फारिग ही बैठे हुए हैं, कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं फौरन हमारी चीज पूरी हो जाती है। और इसके अलावा बाकी मैं जरूर एक चीज ऐड करूंगी कि शुरू में जैसे बात हो रही थी ना कि थोड़ा सा फाइन चार्ज करें, जब क्योंकि मैम ये है काम, हम लोग हमारी जो बेसिक पीछे पर्पस जो है ना वो अल्लाह ताला को राजी करना है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको अंदाजा नहीं होता, कोई ऐसे भूले भटके से आपका ना ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और आपको नहीं पता कि वो किस तरीके और किस लम्हे में वो आपके साथ इतना अटैच हो जाता है कि वो अब जैसा कि मैं अपना भी बताऊं, इवन मैं और मेरे बाकी भी मेरे भाई भी होंगे, मेरी सिस्टर भी होंगी जो एज अ लिसनर कभी मैंने रेगुलरली इसको लिया है, लेकिन वो जब उनको टाइम मिलता होता था तो वो जाहिर सी बात है हर बंदे की अपनी दूसरी जॉब्स भी हैं, बाकी फैमिली सब कुछ है, तो जब जब और जिधर जिधर जितना जितना मिल रहा होता है ना तो वो ले रहा होता है। बिकॉज समटाइम ये हो जाता है कि आपको अगर कोई बंदा फौरन ये करे ना, मैं अपना ही एक्सपीरियंस थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले ना ऐसी कोई ना बहुत सारे लोग ऐसे फी सबीलिल्लाह काम कर रहे होते हैं। अब एक कोई बंदा इसी तरीके से जैसे हम भी समटाइम जब कर रहे होते हैं ना कि इतने सारे आप, क्योंकि जब हमारे पास कोई थोड़ा सा भी नॉलेज आता है हम चाहते हैं कि दूसरे बंदे को भी फौरन मिल जाए, लेकिन ये अल्लाह ताला ने की तरफ से भी वक्त मुकर्रर होता है, वो कब किस टाइम हदायत देता है। तो ये होता है कि अब एक मैं वही शेयर करने लगी हूँ, किसी ने इसी तरीके से कहा था कि हम सर्टिफिकेट देंगे अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो मसलन ये आप इतने पैसे दें, शायद पैसे भी बहुत थोड़े से थे, मेरा ख्याल है 200 पाउंड 200 रुपए होंगे। जो अब मैं बैठी थी ना, मैंने पहले ज्वाइन किया, मसलन उधर से 2-3 ऐसे मैसेज आए, बिकॉज ये तो ऑनलाइन है, जब आपका लेक्चर तैयार है जितने मर्जी लोग इससे इस्तेफादा करें। अब जैसे आप मुझे लेक्चर देते थे ना, आप कहते थे कि जी स्प्रेड करें इसको जिस तरीके से। अब स्पेशली जब मैंने नमाज सीखी, मेरी कोशिश थी, मैंने बहुत सारे लोगों को, इधर मैं इंग्लैंड में होती हूँ तो मैंने बड़े लोगों को कहा कि आप देखें डायरेक्टली करें उनके साथ, लेकिन ग्रामर का करके ना नॉर्मली जब लोग मुश्किल नहीं, ये नहीं है, दुनिया में भी थोड़े बिजी होते हैं। फिर मेरी कोशिश थी कि जितनी की चलो फ्रेंड्स है ना, वो एक नमाज वाला पोर्शन ना कि हमारी जो ये वाली फीलिंग्स देखो, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, हम फील तो नहीं वैसा करते जो हमने, मैं कहूँ कि इस दफा रोजों में जब हमने पढ़ा है तो तब मेरी भी नमाज तभी थोड़ी सी सीधी हुई है। और स्पेशली जब दूसरों को बताया कि आप ये चीजें बस थोड़ी थोड़ी सी ना फील करना शुरू कर दे, और उसका इफेक्ट यूं पड़ता है कि हर बंदा अपने लिहाज से अगर ये ओपन हो, रिलैक्स हो, यानी कि कोई किसी किस्म का कंपल्जन ना हो, तो लोग फिर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अजर दे। अगर आप ना होते तो शायद, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कुरान को कोई मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले खुद से पढ़ना शुरू किया था। जैसे ऑनलाइन आपके पास बुक्स हैं डिफरेंट स्कॉलर्स की उठा के आप तर्जमे के साथ, मुझे था कि मैं गलत पढ़ती, यानी कि पढ़ रही हूँ तो वो क्या गूंगा डांस या अंधों वाला ना मुझे समझ आ रही है, वो वैसे ही पढ़ रहे हैं। सूरह बकरा ही जब शुरू की ना पढ़नी तो उस वक्त मैंने ये सोचा था अच्छा इंग्लिश पढ़ी है मैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि एमफिल भी किया हुआ है, वो लिंग्विस्टिक में है, डबल मास्टर भी है इंग्लिश लिटरेचर में भी, टैफल में भी, लेकिन मेरी इब्तिदा तब हुई थी जब मैं 5th क्लास में थी। हमने इंग्लिश सीखी थी ए फॉर एप्पल करके। तो मैंने कहा अगर मैं वहां से इंग्लिश सीख सकती हूँ ना, तो मैंने अब ये अरबिक को सीखना है। इसके लिए खैर एक डॉक्टर इसरार अहमद का भी एक लेक्चर था कि आप ये पढ़ लेते हो डॉक्टर बन जाते हो, आप क्यों नहीं पढ़ते थे। उनकी एक बात मुझे बड़ा क्लिक करती थी। तो फिर जब शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैंने कहा था जब मुझे याद आता था थर्सडे को हम याद करते थे जो गवर्नमेंट स्कूल में मेरे दौर के लोग होंगे, मैं 38-9 ईयर ओल्ड होंगी, तो हमने पढ़ा था वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, उधर से स्टार्ट लिया था। मैंने कहा था अगर उधर से आ गई तो मैंने इस चीज को लेके अब सूरह यूसुफ तक, शुक्र है अल्लाह ताला का, मैंने रट्टा लगाया था। लेकिन अब जब मैंने QC1 पढ़ा है ना, अब मैं देखती हूँ ना वो चीजें मुझे पता चल रही होती है, अच्छा ये चीज इधर हो रही है, ये बात प्रेजेंट में हो रही है, पास में हो रही थी, पहले मैं पढ़ रही थी, मीनिंग्स आ गए थे रट्टा लगा के जब किया था क्रैम। तो लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को अल्लाह ताला सबको जज़ा दे इसकी कि आपने मेरा तो चीजें बहुत ज्यादा आसान की हैं।
मेरे के लिए अल्लाह करे, अल्लाह ताला कबूल करे आप सबकी कोशिशों को। थैंक यू सिस्टर फॉर योर फीडबैक। सिस्टर शाजिया रफी को भी चांस देते हैं, कुछ कहना चाह रही थी, हैंड रेज किया हुआ। जी सिस्टर शाजिया रफी, सिस्टर शाजिया रफी आप बात करें, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, माइक ओपन कीजिए। सिस्टर शाजिया रफी या कोई और सिस्टर? अच्छा शाजिया रफी, कोई और अगर कोई कहना चाह रहे हैं, नहीं तो हम ज़ाहिद भाई मीनवाइल में अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो या कोई और, तो क्योंकि आप हैंड रेज नहीं रहा। जी मैं जी 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 ज़ाहिद भाई, मेरे ख्याल में जो फीडबैक मिला है वो हमारे लिए काफ़ी इनकरेजिंग है। और ऑब्वियसली नॉर्मली हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जिस तरह हमने शुरू में QC1 में आप लोगों ने भी हदीस सुनी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब वैसे सुन एक जुमला है तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी एसेंस देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली हम ये भी कहते हैं कि जितने भी इस कोर्स के अंदर भाई और बहन आए हैं, वो सारे के सारे जो है वो दे आर दी चोजन पीपल ऑफ गॉड। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, लेकिन अल्लाह ताला तभी तौफीक देता है जब इंसान कोशिश करता है। इसलिए हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि जी अच्छा ये अल्लाह ताला जब तौफीक देगा तो मामला हो जाएगा। आप एफर्ट्स करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आसानियाँ पैदा करता है उसके लिए आपको। मैंने भी एफर्ट्स की, कोशिशें की, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड की तरफ मुझे अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की। मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग खुद भी सीख रहे हैं, लेकिन इसमें जो इसका दूसरा पार्ट है कि जो दूसरों को भी सिखाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली आई एम नॉट सजेस्टिंग एट ऑल कि जी आप इमीडिएटली क्लासेस लेनी शुरू कर दें, वो भी अगर हो सकता है तो करें, लेकिन एटलीस्ट आप वन और दी अदर वे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिस तरह आपने नोट किया है कि इस कोर्स के अंदर भी जो हमारे दोनों कोर्सेज हैं उसमें वी हैव अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं AQTs, असिस्टेंट कुरान टीचर्स। तो इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप में से कुछ बहन भाई आगे आएंगे और अपने आप को वॉलंटियर करेंगे। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं अपना टाइम स्पेयर करना होता, थोड़ा सा आप टाइम स्पेयर कर लें और ग्रुप्स में आप जो एक्सक्यूज मी जो हम नए कोर्सेज हमारे स्टार्ट होंगे उसमें आपको हम ऐड कर देंगे एज ए AQT मेंबर्स, और फिर आप आपकी अपनी लर्निंग भी होती रहेगी और नेक्स्ट कोर्सेज में आप जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था और मैडम फ्रिया से जब हमारा तारुफ हुआ, वो हमारी मैडम फ्रिया जो हमारी QC2 में मेंटोर थी, तो उससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिली और हमारी अपनी भी उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हुई, हमारी लर्निंग भी ज़्यादा हुई। और फिर मैं जिस तरह मैं इस फील्ड में आ गया हूँ और हमारे ग्रुप में जो फेलोज़ हैं वो भी आए इसके अंदर, तो एक तो आपकी अपनी लर्निंग भी इसमें इंक्रीज़ होगी। और फिर ये है कि ऑब्वियसली जिस तरह मैंने हदीस आपको बताई है कि कितना बड़ा अजर है आप कुरान पाक की तालीम को दूसरों तक पहुँचाएँगे, तो अल्लाह ताला आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करे। आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और अल्लाह ताला आपको मज़ीद मौका दे कि आप कुरान पाक को और सीखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। जज़ाकल्लाह ज़ाहिद भाई, थैंक यू सो मच। ज़ाहिद भाई भी जॉब करते हैं, ज़ाहिद भाई की भी फैमिली है, हम सब की फैमिलीज हैं, हम सब के पास अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, काम है। फवाद भाई की भी जॉब है, हेक्टिक जॉब है, इन सब की हेक्टिक जॉब्स है। सुबह से लेकर रात तक ये लोग ऑफिस में होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, हर तरह से मतलब कि सब कुछ कर रहे होते हैं। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इन्होंने अपनी लाइफ का एक जो हिस्सा है ना, यानी अपने टाइम का, इवन जाहिद भाई तो बहुत भाग दौड़ करते हैं आप लोगों के लिए, बुक्स आप लोगों को कोरियर करवा रहे हैं, अल्फला जा रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, कितने काम होते हैं, रिजल्ट बनाने का काम। अभी जो नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं तो हम लोग फ्लायर्स बनाने से लेकर आप लोगों का कोर्स मटेरियल हमने पूरा का पूरा अरेंज करना और फिर आपके स्केड्यूल्स बनाने सब करना, तो इतना मशवरा हमने एक दूसरे से करना, सब करना, बहुत इन्वॉल्वमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इन सब लोगों की के साथ। और मैं इनके साथ पूरी मतलब मुशावरत के साथ चलना होता है। और ये टीम इतनी ब्लेसेड टीम होती है, ये आप देखेंगे कितना ब्लेसेड ग्रुप है ना, कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कुरान की बात करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं, किसी को नुकसान तो नहीं कभी पहुंचाया ना, इंटेंशनली तो कभी।
तो इसी तरह जैसे जाहिद भाई कह रहे थे, आप लोग आगे आए, अपने आप को वॉलंटियर करें। हम ग्रुप में वैसे एक नोटिफिकेशन भी देंगे कि आप में से जो भी कोई थोड़ा सा टाइम देना चाहें लोगों की असाइनमेंट्स चेक करने में, वर्कबुक्स चेक करने में, और हमारे साथ अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट आप में से कोई कर सकता है, कोई ब्रदर या कोई सिस्टर, तो हम आपको कुछ ना कुछ ड्यूटी रिक्वेस्ट करें तो आप हमारे साथ करें। और जस्ट ये सब कुछ जो है ना अल्लाह की रजा के लिए होगा इंशाल्लाह, और आपको दुआएं मिलेंगी। ये सारे स्टूडेंट्स आपके लिए सदका जारिया बने, अल्लाह करे ये सब लोग, जाहिद भाई आपके लिए और तमाम हमारी टीम के लिए, हम सब के लिए ये लोग सदका जारिया बने। एक सिस्टर जिन्होंने हैंड रेस किया था, उम्मे तलहा ने भी सिस्टर किया उम्मे था। तलहा जी, वो हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मैंने ये पूछा कि अभी आगे QC3 का फिर जो इनका होगा ना, तो वो अल-फलाह के साथ ही आप QC3 का कर रही हैं? क्योंकि मैंने शुरू से आपकी बात जी, मैं QC3 कर रही हूँ। QC3 शुरू हो रहा है 2 जून से, ठीक है, 2 जून से शुरू हो रहा है। ठीक है, बट अगर इससे पहले कोई करना चाहे, कोई और भी QC3 हम सर्कुलेट अगर हमें नजर आए तो वो भी हम शेयर करें, ठीक है। यानी QC3 कब होगा, आप कब करवा रही हैं? मैं 2 जून से शुरू कर रहा हूँ, 2 जून से शुरू। अच्छा जी, अब अगर आप लिख दे मेरे ख्याल में, ठीक है, शायद लिख दिया आपने। तभी लिखा हुआ है। सही, नहीं मैंने दरअसल नहीं था ना, ठीक है। ये आपके जब मैं चाह भी यही रही थी ना कि आगे अगर इनका आपके साथ QC3 हो जाए तो ज्यादा मुझे वो था जी। 2 जून से आपकी QC3 की क्लास शुरू हो इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, वो तो आप साथ साथ ही हैं, तो 2 जून से इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ज्वाइन करना इंशाल्लाह। हाँ, उस दौरान में आप इनको खुद से थोड़ा सा एडवांस में करवा सकती हैं। और ये कि हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप्स में इन टच रहेंगे। हो सकता है मैं कोई ना कोई थोड़ी सी आप लोग टिप्स देना भी शुरू कर दूं। QC3 जब तक आपका फॉर्मली शुरू ना हो और QC2 जब तक फॉर्मली शुरू ना हो, उस दौरान में मुझे जहाँ जहाँ पे मौका मिलेगा मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मे बी कुछ ना कुछ इनफॉर्मली पढ़ा भी दूं। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैवल भी करना है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इस दफा गैप डाल के तो जून से ये शुरू किए हैं कोर्सेज, ठीक है। अदरवाइज हम जल्दी शुरू कर लेते, तकरीबन मई के मिड में हम करना था, लेकिन थोड़ा कुछ काम आ गया था। इंशाल्लाह 2 जून से हम लोग QC3 शुरू कर लेंगे, और फिर QC2 जो है वो आई थिंक 5 जून से शुरू हो रहा है हमारा। जी ठीक है इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन ग्रुप्स में शेयर होगी इंशाल्लाह, हर इंफॉर्मेशन तफसील के साथ। बिल्कुल जी जी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सिस्टर फौजिया, आपने कोई बात नहीं की, नाराज तो नहीं है आप? कुछ सिस्टर्स ने तो मुझे आवाज ही नहीं सुनाई पूरे कोर्स में। चले, जिन्होंने आवाज नहीं सुनाई आज वो अगर सुना दें, या अगर आवाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर नुज़त आबे कौन बोल रही है? जी नुज़त आबे बात कर रही हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन अजर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा, इजी हो गया मेरे लिए। टेबल्स के थ्रू, TPI के थ्रू मीनिंग्स को याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह। आगे के लिए सोच रही थी कि मैं क्या करूं, अपने टाइम स्केड्यूल को देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अरबी लैंग्वेज जो है ना वो सीखूं। तो उसके लिए मुझे गाइड कीजिए कि मेरे लिए आसानी भी हो, और किस तरह से मतलब कोर्सेज का मुझे कैसे पता चलेगा सब कुछ। कोर्सेज का आपको बताएंगे। अरबी लैंग्वेज का कोई कोर्स अल्फला से शुरू होगा तो मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। और आप समझें कि अभी आपने जो ये सिस्टम शुरू किया ना, QC का सिस्टम, ये QC का सिस्टम बहुत ही यूजफुल, प्रैक्टिकल, बेनिफिशियल सिस्टम है। ये सिस्टम जो है ना, इसके बेनिफिट्स जो है ना वो मैनीफोल्ड हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप समझे कि इसमें आप अरबिक लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, इसमें आप अरबिक ग्रामर सीख रहे हैं, इसमें आप कुरानिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुरानिक वोकैबुलरी सीख रहे हैं, तशरीह भी सीखेंगे, तफसीर भी सीखेंगे। तो ये कोर्स जो है ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इंशाल्लाह दिल नहीं कर रहा मेरा छोड़ने को, दिल तो चाह रहा है कि मैं आगे भी साथ रहूं इंशाल्लाह ताला। आप कोई भी और कोर्स ले सकती हैं, लेकिन इस सिस्टम को ना छोड़ो। मैं ये आपसे कहूंगी कि इस सिस्टम में कैरी ऑन करें। QC1 से 2 में जाएं, 2 से 3 में जाएं, 3 से 4 में जाएं, चलते जाएं। आपको बहुत इंशाल्लाह हर कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां करे इंशाल्लाह। जी, एक सिस्टर है वो, मेरे ख्याल बीच में उनका नेट का इशू हुआ था। अगर आप QC1 का रिजल्ट सिस्टर सदफ नौरीन है, उनका एक्सीलेंस में होगा, अगर आप वो शो कर दें, वो भी उन्होंने मेरे में ज्वाइन किया दोबारा से। आप देखती जाएं अपना रिजल्ट QC1 का। और ये QC1 है, ये QC अभी 1 आ गया, 1 आ गया। सिस्टर सदफ नौरीन, सिस्टर सदफ नौरीन आया था नाम राइट? जी इनका नेक्स्ट पर जाएं, इनका होना तो चाहिए। नहीं, नाम नहीं आया मुझे लगता है। ये तो मैरिड आ गया। सदफ नौरीन में नेक्स्ट नाम पर जाएं। नहीं देखें मैम अस्सलाम वालेकुम, रामीन तारिक के नाम से है। देखा ना, अच्छा नाम भी तो अच्छा
अच्छा नहीं, वो मेरे रामीन पास तारिक, नाम उनका डिफरेंट सेव है, ठीक है दिखा दें उनको जी। कौन सा नाम बताया इन्होंने जाहिद भाई? रामीन तारिक, यस वो थी रामीन जी ये तारिक। सिस्टर आपका नाम आ गया। अच्छा तो ये दो नाम क्यों है सिस्टर? इसका क्या मतलब हुआ? सदक नौरीन और रामीन तारिक, ये क्या हुआ? इन्होंने शायद पहले भी किया था, इनकी और सिस्टर होंगी मेरे ख्याल में, मेरे नाम सेव इस तरह हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हो गया सिस्टर, आप खुश हैं? रिजल्ट आपका पहुंच गया? जी हाँ जी, बहुत खुश हूँ। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाह रहा है सेशन के एंड में? कोई फीडबैक, कोई किसी को कोई शिकायत हो हमसे तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, बाज़त हो जाते हैं बहुत जाहिर है अच्छा कि सॉरी, मैंने एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। एक तो ये कि मुझे जो एक आपकी QC2 की स्टूडेंट है डॉक्टर अंजुम नाज, उन्होंने रेफर किया था, उनका थैंक यू भी कहना था, उनको भी जज़ाकल्लाह जिन्होंने मुझे जो है वो इस चीज़ का हिस्सा बनाया। और दूसरी बात ये कि मैं भी बड़ी, मैंने कहा अभी सारा तो नेकी उनको मिल गई डॉक्टर अंजुम नाज को, तो मुझे भी नेकी कमानी चाहिए। मेरे तवज्जो से भी कोई एक आध वो स्टार्ट हो ना जो मुझे भी दुआएं मिले, तो इस कार्य खैर में भी हिस्सा लूँ। तो मैंने काफी अपने ग्रुप्स में शेयर किया ये, तो उसी हवाले से मैं चाह रही हूँ कि ये जो QC1 का जो आप स्टार्ट करेंगे ना, उसका भी लिंक प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, ताकि वो भी कोई एक भी हो जाए तो मेरी तो आखिरत संवर जाएगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को तो दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, बस आप लोगों ने ग्रुप्स नहीं अभी छोड़ने। मैं देख रही हूँ कुछ लोग ग्रुप्स को लीव करना शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी। तो ग्रुप्स में QC1 की इंफॉर्मेशन भी आएगी, 2 की भी आएगी, 3 की भी आएगी, ठीक है? हाँ, तो आप इन्हीं ग्रुप्स को ही कंटिन्यू करके इनका सिर्फ नेम चेंज नहीं कर सकते? जैसे हमारा बैच 435 है, तो आप उसी को QC नहीं वो 2 कर काफी दीजिए। नए स्टूडेंट्स आते हैं, फिर मसला उसमें होता है, कुछ और अपने सिस्टम के स्टूडेंट्स भी साथ आते जाहिर हैं। कर लेते हैं। आप ठीक समझे कि आपके लिए वही बात है कि आप समझे एक नए ग्रुप में आ जाएंगी ना, तो बाकी हम अपने सिस्टम के मुताबिक ना एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसमें कुछ नए स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, कुछ हमारे पीछे से आगे आ जाते हैं ना, 1 से 2 में आते हैं, 2 से 3 में। चलिए सही है, वो तो टेक्निकल चीज है जी, बिल्कुल जी जी सही है। इंशाल्लाह ग्रुप में आप मौजूद होंगे तो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। और कोई कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम अपना इस दुआ का मतलब जाहिद भाई से प्लीज रिक्वेस्ट करें कि मेरा रिजल्ट चेक कर लें, क्योंकि मेरे 4 गूगल फॉर्म नहीं चेक हुए ना, उनमें 0 लगा और 85 पॉइंट कुछ अच्छा परसेंटेज आ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ जी, करेक्शन कर देंगे। ठीक नबीला का चेक कर लूंगा ना। जी अस्सलाम वालेकुम, जी, मैं जी, फरीदा यास्मीन बोल रही हूँ। तो जी, मुझे जी, भी मेरा रिजल्ट बता दीजिएगा, और बता दें कि कितने मैंने होमवर्क नहीं कर सकी, मुझे नहीं समझ। सिस्टर फरीदा, आप किस नाम से आप रजिस्टर थी? फरीदा यास्मीन। QC1। हाँ जी। फरीदा यास्मीन का रिजल्ट वैसे आया था? चेक करना पड़ेगा जी, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, सिस्टर फरीदा यास्मीन 71.9 मेरिट, माशाल्लाह। कोई कंप्लेन है सिस्टर आपको? कोई चीज मिसिंग है? मुझे लगता है मैंने होमवर्क नहीं सही किए, मुझे सही समझ नहीं आई ना मैंने क्या मिस किया। ठीक है जाहिद भाई, अच्छा उसमें दो चीजें हैं, अगर तो होमवर्क कोई मिस हो गया है और वो आप अटेम्प्ट करना चाह रही हैं तो वो चलें, आपको अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। लेकिन अगर मार्क्स कम है तो वो फिर आप इम्प्रूव कर सकती हैं अगर आप चाहती हैं, उसकी ये ऑप्शन होती है। वो किस तरह? वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, शेयर करेंगे ना आपसे। जब नया कोर्स शुरू होगा ना, तो आप उस कोर्स में एज अ लिसनर, एज अ रिपीट स्टूडेंट भी शामिल हो जाइएगा। और जाहिद भाई देख लेंगे कि अगर आपको कोई पीछे से होमवर्क वगैरह मिसिंग है तो आपको एक दफा फिर चांस दे देंगे, आपको लिंक दे देंगे, आप उसको कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ से हो सकता है अपग्रेड हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। ना करें, परेशान ना हो, इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं कभी कभार, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मकसद तो सीखना है ना, सीख रहे हैं आप लोग ना, तो इसी में हमारे लिए यही हमारे लिए खुशी की बात है। तो अगर कोई और कुछ नहीं कहना चाह रहे तो हम सेशन का इख्तिताम कर लेते हैं, और इस दुआ के साथ तकब्बल, ये क्या है? तकब्बल अल्लाहु मिन्कुम सालिह। देखिए इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला कबूल करे हमसे और आपसे क्या, जो हमने सौले अमाल किए हैं। ठीक है, जो भी हम अच्छे काम करें अल्लाह ताला उनको कबूल करें और हमें तौफीक दें कि हम अच्छे ही काम करें। लेकिन इंसान होने के नाते हमसे गुनाह और गलतियां और कोताहियां होती रहती हैं, उसके लिए अल्लाह ताला से हमेशा जो है वो माफी के तालिब रहें। और ये है कि जुड़े रहें इस सिस्टम के साथ,
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास में तो हम इसी तरह की चॉकलेट्स आप ठीक है। तो लिखा हुआ है इलल लिक़ाई मअ सलामा, इसका क्या मतलब है? इसके भी ट्रांसलेशन करते जाएं आखिर में, क्या मतलब है इसका? नेक्स्ट मुलाकात तक सलामती हो, सलामती के साथ। Until we meet next time, मअ सलामा यानी सलामती के साथ, खैर के साथ। इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में मिलेंगे और ड्यूरिंग दैट पीरियड हम लोग ग्रुप में भी आपस में एक दूसरे के साथ रब्ता रखेंगे। तब तक के लिए हाफिज, अल्लाह, ऑल द टीम, बहुत शुक्रिया।